A very good morning to all the participants. I am Prashant Parashar from Department of Media Management, Makhala Chaturvedi, National University of Journalism and Communication, Bhopal. I heartily welcome all the participants. Join online from 23 states of our country to the Faculty Development Program on NEP 2020 Implementation for Quality Education. Today, day 3 of our first session of FDP, we are honored to have Mr. Rajiv Agrawal, a motivational speaker and life coach with us. Very warm welcome to you, sir. Rajiv Agrawal, sir, will speak on topic managing stress to enhance quality teaching. I would like to give brief introduction of sir before handing over our first session to him as a speaker. Rajiv Agrawal sir is an industrialist, life coach, master facilitator, mentor, and motivational guru. In the words of Rajiv sir himself, industrialist by profession and trainer by passion. May I say several qualities encapsulated in one person, which is very exceptional. In 20 years, Rajiv Agrawal sir has conducted 5,000 sessions, 400 corporate workshops, and touched 2 lakhs lives. Sir has done BTech in Mechanical Engineering from NIT Kurukshetra in 1982, and thereafter he completed his MBA degree. He has completed MA in Clinical Psychology and received gold medal in MA Clinical Psychology. Rajiv Agrawal sir is an in-demand life coach and exceptional credentials. An industrialist, motivational speaker, pioneer in personal growth field, and is the expert at human skills in leadership, teamwork, relationship, and life. He is a speaker who can engage, inspire, and entertain audience to harness their true potentials. He is business coach and leading experts in psychology of human behavior as it relates to life makeover strategies, leadership skills, relationships, and developing successful team. Agrawal sir has running his own 3 industries successfully at Mandideep near Bhopal. He is serving as president of Association of All Industries Mandideep. He is co-chairman of Bhopal Management Association. He is member of Confederation of Indian Industries CII. He is member of managing body and member of academic councils, member of board of studies in several universities of Madhya Pradesh and across India. Sir has awarded the Innovative Trainer Award by Indian Society for Training and Development. Sir has many achievements in his account, and he has fulfilled his responsibilities towards the society very well. After reading all this, I am also feeling very energized today to invite you as a speaker. Sir, I once again welcome you to address this session and request Rajiv sir to start this session. Over to Rajiv sir. थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स. और सबको मैं ये बता दूं कि ये सब मैंने इनको लिख कर दे दिया था पहले प्रशांत जी को, और उन्होंने पूरा पढ़ दिया. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका ये सब पढ़ देने के लिए. मेरी फीलिंग ऐसी हो रही है कि आई मीन बड़ा रुतबा, बड़े बड़े लोग आए हैं, किए होंगे कुछ पुण्य जो उपयोग में आए हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है. कैन आई रिक्वेस्ट एज मेनी पीपल कैन कम ऑन कैमरास, प्लीज कम ऑन कैमरास. अगर आप दिल से सुनना चाहते हैं ना तो कैमरा पे आ जाइए, और अगर मुंह से तो और गले से तो आप सुनते ही रहते हैं और सुनते भी रहेंगे. थैंक यू वेरी मच Dr. Tushar and everyone who is coming. Upasana Sharma ji, Anshu ji, come, we will enjoy it, and thank you very much for coming in. So मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई पानी में बहता हुआ तिनका अचानक आकर शिवलिंग पे चढ़ जाए तो कैसे इतराने लगता है. तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है. इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया. तो थैंक यू वेरी मच. इंजीनियर शशि भूषण जांगड़ा जी भी आ गए हैं, मुकेश चौरसी भी आ गए. थैंक यू वेरी. तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ. आप लोग का सहयोग बना रहे. कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, और कहीं अटक जाऊं तो मेरी सहायता कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए शुरू करते हैं. कहते हैं एक बार डार्कनेस गई, डार्कनेस अंधेरा भगवान के पास गया और जाके बोला कि साहब मुझे एक शिकायत करनी है. बोलिए किसकी करनी है. कहता सर मैं आपके जो सन है ना सूरज, इससे बहुत परेशान हूँ. कहता क्यों परेशान हूँ. कहता साहब यह रोज सुबह मेरे पीछे लग जाता है, रोज सुबह आ जाता है, इसने मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी है. दिन भर भागम भाग का खेल चलता रहता है, मैं इससे भागता रहता हूँ, ये मेरे पीछे लगा रहता है, और मैं शाम को किसी तरह थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता हूँ और ये फिर सुबह से आ जाता है. और ये आज से नहीं सर, सालों से, करोड़ों साल से मुझे बहुत तंग कर रखा है. पता नहीं क्या दुश्मन है, ये भागम भाग का खेल सालों से चल रहा है.
मेरी क्या गलती है, ये सदियों से मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है, इसने मेरा जीना दुश्वार किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सूर्य को पकड़िए और उसे थोड़ी फटकार लगाइए, उसे समझाइए। तो ईश्वर ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हो तो बुलाता हूँ। तो उन्होंने बुलाया, सूरज को बुलाया। ही कॉल्ड हिम, सनी कम हियर, देयर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो बोले क्या हो गया, क्या कह हो गया है? कहता है कि अंधेरा है, ये शिकायत कर रहा है कि तुम रोज उसे बहुत परेशान कर रहे हो, बड़े परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कंप्लेंट क्या है, तुम उसके पीछे क्यों लगे हो, रोज सुबह से उसके पीछे लग जाते हो, शाम तक लगे रहते हो, तो आराम नहीं करने देते हो, जहां जाते हो उसके पीछे लगे रहते हो, बहुत तंग किया हुआ है तुमने, ऐसा क्यों किया हुआ है? थैंक यू पीयूषा जी भी, शी इज आल्सो ऑन कैमरा, दोस हु कम ऑन कैमरा, थैंक यू वेरी मच, दिस गिव्स अस एनर्जी। तुम बड़ा परेशान किया हुआ, क्यों किया, तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या शिकायत है, क्या उससे दुश्मनी है, तुम्हारी क्या दुश्वारी है, ये तुम ठीक करो। तो सूर्य ने कहा कि साहब, मैं तो करोड़ों सालों से यूं ही ब्रह्मांड में मौजूद हूँ, कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसको तो मैंने आज तक देखा नहीं, मैं इसे जानता नहीं, मैं इसे पहचानता नहीं, परेशान करना तो दूर की बात है, मेरा कभी इससे आमना सामना नहीं हुआ, और ये सारी जो शिकायतें हैं ये बेबुनियाद है, ये गलत है, दे हैव नो, इनमें कोई वजह नहीं है शिकायत करने की। तो लेकिन अगर आप कह रहे हैं, आप प्रभु हैं, आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कोई सच्चाई हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसे मेरे सामने बुला लिया जाए, और मैं उससे माफी भी मांग लूंगा, उसकी शिकायतें सुन भी लूंगा, और ये भी वायदा करता हूँ कि पहचान लूंगा तो आइंदा उसे शिकायत नहीं करने का मौका दूंगा, आइंदा उसे परेशान नहीं करूंगा। तो दोस्तों, उस दिन अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुलाया जा सका, ना उस दिन बुलाया जा सका, ना कभी बुलाया जा सकेगा। अंधेरा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, देयर इज नो डार्कनेस, देयर इज एब्सेंस ऑफ। इसी तरह जिंदगी की सारी चीजें, जो थोड़ा बहुत आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, वो थोड़ी सी हैप्पीनेस की कमी है, जो थोड़ी सी एंजाइटी है वो पीसफुलनेस की कमी है, जो थोड़ी सी डिप्रेशन है वो फुलफिलमेंट की कमी है, और नेगेटिविटी कुछ नहीं है। जो लोग थोड़े नेगेटिव है, जो हर बात में नेगेटिव देख रहे हैं, उनकी जिंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी की कमी है। उनके आसपास थोड़े पॉजिटिव लोग आ जाएंगे तो उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भर जाएगी। पॉजिटिविटी नहीं होने से नेगेटिविटी का एहसास है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिविटी की कमी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, और यकीन मानिएगा, आज के सेशन से आप एक बात लेके जाइएगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस बात को समझिएगा कि यकीन मानिएगा, ये जो आपका लटका हुआ चेहरा है, ये एक छोटी सी मुस्कान की कमी है। जैसे सूरज और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, आपकी उदासी और आपका लटका हुआ चेहरा और आपकी मुस्कुराहट एक साथ नहीं रह सकते। मेरी एक गुजारिश है आप सब जी, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, जो 75 लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि अभी की अपनी अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लाइए, और मेरा वायदा है आपकी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो आपको तंग कर रही हैं, वो नहीं रह पाएंगी। परेशानी और मुस्कुराहटें साथ नहीं रह सकती। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, इस मुस्कुराहटों की बात करते हैं कि जिंदगी में कभी कभी तनाव भरी जिंदगी में, हेलो, तनाव भरी जिंदगी में चैन और सुकून का दौर चाहिए। तनाव भरी जिंदगी में चैन और सुकून का दौर होना चाहिए, और उदासियों की सिलवटों में बेबाक मुस्कुराहटों का ठोर होना चाहिए, बेबाक मुस्कुराहटों का ठोर होना चाहिए। तो आइए कुछ बेबाक मुस्कुराहटों के साथ बात को शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। जुटे रहिए, मैं सवाल पूछता रहूंगा, कुछ छोटे छोटे जवाब दे दीजिए। आप सब गुरु लोग हैं, मेरे जैसों को अगढ़ों को आपने गढ़ बना दिया है, तो आपका सबका स्वागत है, आपको पुनः नमन है, पूरे विनय से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए, मुझे आशा है कि जैसा कि प्रशांत जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो उन्होंने मुझे डेफिनेटली स्क्रीन शेयरिंग की पावर्स दे दी होंगी, तो मैं छोटी मोटी स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन मैं हो सकता है ना करूं, तो आपसे बात करने में बात बन जाए। तो मुझे बताइए, आप सबको कभी कभी तनाव होता है क्या? जो कैमरा पर है वो हाथ उठा देंगे तो चलेगा, और बाकी लोग अनम्यूट करके बोल दीजिए या चैट बॉक्स को रन कीजिए, या जिन जिन को कभी कभी तनाव होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर तुषार, डॉक्टर इंजीनियर शशि भूषण। तो तनाव 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 सभी को कभी ना कभी जिंदगी में होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो तनाव होता है तो क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है तनाव होता है तो क्या होता है? शशांक जी जरा चैट बॉक्स पर नजर रखिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि क्या जवाब आ रहे हैं। मैं भी देख सकता हूँ, मुझे लगता है चैट बॉक्स, यस मैं देख सकता हूँ। तो होता ही है। ओके ओके ओके, मुझे बताइए और क्या क्या होता है जब तनाव होता है तो क्या होता है? तनाव होता है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, ओके, इरिटेशन होती है, अनहैप्पीनेस होती है, ओके ओके, हमें इरिटेशन होता है। फिर थोड़ा और बताते चलिए ताकि मैं सब जगह, होता ही है, थोड़ा और बताइए क्या क्या हो रहा है। जब भी आपको कभी तनाव हुआ, क्या महसूस करते हैं, क्या परेशानी महसूस करते हैं? काम पर से इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, गुस्सा आने लगता है, काम पर असर होता है,
कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वेरी ट्रू, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है? चलिए एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ये बताइए। ये सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। मेरा वायदा है, मेरा दावा तो नहीं है, बट मेरा वादा है कि जब तक ये सेशन खत्म होगा, आपकी जिंदगी से बहुत सारा तनाव काफूर हो चुका होगा, शायद कभी आएगा भी नहीं। तो मुस्कुराहटों के इस दौर की एक शुरुआत एक बेहतरीन कहानी से करता हूँ। दो दोस्त थे, आप जैसे पढ़े लिखे, गुरुजनों से पढ़े लिखे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने पीएससी का एग्जाम दिया, और जब पीएससी का एग्जाम दिया तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया, एक एसडीएम बन गया, और नौकरियां कहीं दूर पार लग गई, सरकारी नौकरी थी। बरसों मुलाकात नहीं हुई। आप सब भी नौकरी में आने के बाद शायद वो लंगोटिया या स्कूल कॉलेज के कभी कभी छूट जाते हैं, तो वैसा उसके साथ भी हुआ। तो एक बार इसकी कहीं दूर पोस्टिंग हो गई, और इसको लग रहा था कि कहाँ फंस गया हूँ, दूर जंगल में कहीं मंडला के आसपास हो गई फॉरेस्ट ऑफिसर की। तो उसने सोचा यहाँ कैसे टाइम कटेगा, किसी तरह भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर ट्रांसफर करवा लेता हूँ। लेकिन चूंकि 1-2 साल काट रहा था, तो उसे अचानक ही कहीं से खबर लगी, जो उसका खास लंगोटिया यार था, जो उसके साथ पढ़ा, जिसने पीएससी का एग्जाम दिया था, वो जंगल के दूसरी तरफ 25 किलोमीटर दूर कस्बे में एसडीएम लगा हुआ है। तो उसने अपने एक मातहत को कहा, जरा उसका फोन नंबर निकालो। मातहत ने 15-20 मिनट में फोन नंबर लाके दिया, और इसने उसको एसडीएम को फोन घुमाया, फॉरेस्ट ऑफिसर ने। तो उसने फोन उठाया और उधर से बोला, हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो फॉरेस्ट ऑफिसर बोला, अच्छा बेटा, बड़ी तमीज से बात करनी सीख गया तू। दोस्त परवाह नहीं करते, आप कितने भी ऊंचे पद पर बन जाए, वो दोस्ती बने रहते हैं, isn't it? तो उसने, एसडीएम ने फोन रख दिया। अब इसे मजा आया, इसने कहा, अच्छा चिड़चिड़ा रहा है। दोबारा फोन लगाया, 15-20 मिनट, आपकी बार एसडीएम ने उठाया, भैया कौन बोल रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो, मैं एक मीटिंग में हूँ। अच्छा बेटा, बड़ी मीटिंग लेने लग गया तू। एसडीएम ने फिर चिड़चिड़ा के फोन रख दिया। इसने तीसरी बार आधे घंटे बाद फिर फोन लगाया, आपकी बार एसडीएम ने फोन उठाया, कहता, क्या बदतमीजी कर रहे हो यार, तुम बार बार फोन लगाए जा रहे हो, कौन है तुम, मैं फोन नंबर आ रहा है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। कहता, अबे मुझे पहचान, क्या पहचानू, अबे मैं देव बोल रहा हूँ। 2 सेकंड एसडीएम से उतर के कहता, देव, अबे देवू, तेरे पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया साले, इतने सालों बाद तेरा फोन, कमाल हो गया। कहता, यार गजब, और तू बड़ा अफसर बन गया, बड़ी मीटिंगें ले रहा है। अबे कि ये तो ऐसी चलती रहती है, कहा की मीटिंग है क्या, ये तो ऐसे ही चलता रहता है सरकार। और क्या हाल चाल है, बढ़िया हूँ, तू कहाँ है? मैं यार यहीं आ गया हूँ तेरे पास, जंगल के दूसरी तरफ 25 किलोमीटर दूर। तो फॉरेस्ट ऑफिसर बोला, यार मैं शाम को मिलने आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, हार्ट टू हार्ट बातें करेंगे। कहता है, राजा पक्का आ जा, और शाम को 8 बजे तक आ जा, तब तक फ्री हो जाएंगे, मिलते हैं। माँ कहाँ है? तो एसडीएम बोला, माँ भी मेरे साथ ही रह रही है अभी। कहता, क्या बात है, मजा आ गया। तो साहब, जंगल में सबसे चलने का आसान साधन क्या है? आप अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, जब भी मैं सवाल पूछूं जवाब देते रहिए। जंगल में चलने का सबसे मुफीद साधन है मोटरसाइकिल। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने रात को मोटरसाइकिल उठाई, और 25 किलोमीटर कवर करके जंगल में दोस्त के घर पहुंचा। वो घर आया नहीं था। माँ मिली, माँ के पैर छुए, माँ प्रणाम। थोड़ी देर देखते रहे, कहती, देबू तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। माँ आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दोस्त भी मिल गया, गले मिले, ये वो। तो माँ कहती, देबू तू बड़ा कमजोर हो गया। अरे माँ, आपके हाथ के आलू के पराठे, टमाटर की चटनी नहीं खाई बड़े दिन हो गए, इसलिए कमजोर हो गया, जल्दी से खिलाओ। तो साहब, दोनों दोस्तों ने गप्पे मारी, पुराने सुख दुख किए, यादें ताजा की। माँ के हाथ के बने हुए बेहतरीन पराठे खाए, टमाटर की चटनी खाई। रात के कब 12-1 बज गए, पता नहीं लगा। तो इसने कहा, मैं निकलूं यार, पता नहीं लगता कौन दौरे पर कब आ जाए अधिकारी, आजकल ऐसे ही चल रहा है माहौल। तो उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल निकल तू, पर अपन मिलते रहेंगे। तो साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर ने मोटरसाइकिल उठाई, जंगल की में चल दिया। रात को जंगल में से गुजर रहा था। 25 किलोमीटर लंबा जंगल था। लगभग 11-12 किलोमीटर के बाद मोटरसाइकिल हो गई बंद। मोटरसाइकिल हो गई बंद। जब मोटरसाइकिल बंद हो गई, तो अब इसने कहा, यार ये तो फंस गए, अब क्या करूं? तो उसने कहा, यार एक काम करता हूँ, थोड़ा अल्टी पल्टी करता हूँ, हिंदुस्तानी मोटरसाइकिल घुमा के, दबा के, झुका के देखता हूँ, किक मारता हूँ, नहीं स्टार्ट हुई। बहुत कोशिशें कही, नहीं स्टार्ट की। तो थोड़ी देर में इसने मोटरसाइकिल के टैंक का ढक्कन खोला, तो देखा उसके अंदर पेट्रोल खत्म। रात का 1 बज रहा है, साए साए है, मोबाइल में सिग्नल नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया मोटरसाइकिल में। मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आप कभी रात को 1 बजे ऐसी स्थिति में हो, पैदल हो, अकेली हो, अकेले हो, जंगल का टाइम हो, तो क्या होगा? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो यार, ऑफिसर ने कहा, यार क्या करेंगे, अब फंस तो गए हो जंगल में, पैदल ही चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं। तो उसने चलना शुरू किया। 2-4-10 कदम चला होगा, अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। तो उसको लगा कोई जानवर होगा, अंधेरे में आंखें चमकती हैं। तो उसने कहा, पास जाके देखता हूँ। थोड़ा दूर और गया, तो देखा 10 फुट जब दूर रह गया उन आंखों से, तो देखा, उसने पहचाना, फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने एक शेर खड़ा हुआ था। हेलो, सामने एक शेर खड़ा हुआ था।
अब मुझे सवालों के जवाब चाहिए और आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरे पे रहेंगे तो हमें सेशन का बहुत मजा आएगा। तो वो मेरा सवाल आप सबसे ये है जो मुझे सुन रहे हैं 80 पार्टिसिपेंट 85, रात को 1 बजे इफ यू आर इन पिच डार्क फॉरेस्ट ऑन फुट, पैदल चल रहे हों और सामने शेर आ जाए तो क्या महसूस करेंगे? तो क्या महसूस करेंगे? हेलो, जवाब देते जाइए ताकि मुझे पता लग जाए। अनम्यूट या चैट बॉक्स दोनों जारी रहें। फियर, फियर, डॉक्टर निर्मला कहती हैं फियर। ओके, और क्या होगा? और क्या होगा? पैनिक। ओके, पैनिक होगा, फियर होगा, डर, जिंदगी खत्म। बसव दास जी, प्रमोद गोयल जी भगवान को याद करेंगे कि हे ईश्वर तेरा। ओके, एंजाइटी बहुत हो जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट, मुझे और जवाब चाहिए, मुझे पता लग जाए कि सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ। और क्या महसूस करेंगे? और क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शशि भूषण ने कहा बचने का उपाय देखेंगे। वाह, मोनिका जी कह रही Flight or fight? यस प्लीज। Will either think for fight or flight. थैंक यू वेरी मच। आप तो गुरु हैं इसलिए मैं गलत जगह पे सब सवाल पूछ रहा हूँ गुरुओं से। तो थैंक यू मिगलानी जी, थैंक यू वेरी मच। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिगलानी जी, थैंक यू वेरी। ट्राई टू रन, पैरालाइज हो जाएंगे फियर से। तरह तरह के सवाल। तो फियर कैसे महसूस होता है? कुछ लोगों ने लिखा फियर, फियर कैसे महसूस होता है? हाउ डू यू फील फियर? फियर होता है तो क्या लगता है? एंगर को भी निपटेंगे, स्ट्रेस को भी निपटेंगे। स्ट्रेस, हाई बीपी, थैंक यू अर्चना नायक जी। हाई बीपी, थैंक यू वेरी मच। पीछे कहा उन्होंने। फियर कैसे महसूस होता है? पैनिक कैसे महसूस होता है? स्वेटिंग, ओके, किसी ने कहा स्वेटिंग होने लगेगी, ब्लैंक हो जाएंगे, हाथों से पसीना आने लगेगा। अभी चल जी, थैंक यू वेरी मच। शशि भूषण, हार्ट बीट बढ़ सकती है। यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तुषार जी ने कहा फियर का मतलब है, डॉक्टर तुषार लोखंडे से, हार्ट रेट विल इंक्रीज इफ इन फियर एंड वी विल स्वेट आल्सो एंड एवरीथिंग। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जवाब चलते रहने दीजिए, चैट बॉक्स को आगे लगाए रखिए, दौड़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। तो अंशु मिगलानी जी, थैंक यू वेरी मच। जहां मुझे जाना था वहां आप ले गए। आप ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ने हम सबके अंदर नहीं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, हर तरह के लोगों के अंदर, हर तरह के जीव के अंदर एक ही रिस्पॉन्स बनाया जब हम किसी अप्रिय स्थिति से, when we are into a dangerous situation, on undesirable situation or a difficult situation, there are only one response that we have, that is fight or flight. या तो स्थिति से लड़ो या भाग जाओ। इंजीनियर जांगड़े साहब ने कहा कि साहब लड़ने सोचेंगे, दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाए या कोई डंडा मिल जाए तो उसके मुंह में घुसा दे या कुछ ऐसा करने की सोचेंगे। That kind of thing comes to our mind, isn't it? फाइट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट, अब ध्यान से देखिए, मैं जवाब आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। प्लीज पहले हम समझ लें कि स्ट्रेस क्या, 3 हिस्सों में सेशन करेंगे। स्ट्रेस क्या, इसका अच्छा बुरा क्या है, आप सबको जनरली मालूम है, बट मैं थोड़ा सा डीपर लेवल पे ले जाऊंगा बात को, बड़ी सिंपल शब्दों में। दूसरा, कैसे निपटना है, मेरा वायदा और फिर वही दावा है आपसे कि आप उसका काफी कम करके जाएंगे यहाँ से। और तीसरा, टीचर्स के लिए और क्वालिटी एजुकेशन जो आज का टॉपिक है उसके बारे में क्या करें, टीचर्स क्या कर सकते हैं। तो पहला, तो आप ध्यान दीजिए, जब आपका दिमाग जो है वो आपको बचाने में जुट जाता है। जब भी आप किसी अप्रिय स्थिति में होते हैं तो वो आपको बचाने में जुट जाता है। जैसे ही शेर देखा, दिमाग को सिग्नल गया कि दिस इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट। और फाइट और फ्लाइट में सबसे ज्यादा कौन से 2 अंगों की जरूरत पड़ती है? लड़ने के लिए या भागने के लिए? कौन से 2 अंग शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट है? एनीवन? डॉक्टर राजेश लोहानी, राजेश जी, अर्चना नायक जी, डॉक्टर भारती, पुष्पा पाटिल जी, शिवा कुमार जी, एनीवन? ब्रेन एंड लेग्स, फिजिकल के लिए ब्रेन एंड लेग्स। ओके, सब दौड़ने के लिए और लड़ने के लिए आप हाथ और पैर। थैंक यू वेरी मच, हु सेड इट, थैंक यू वेरी मच, गुड गुड गुड, आई एम लाइकिंग इट। इंजीनियर शशि भूषण जांगड़ा जी, आप तो गुरु हैं, आप ही यहाँ आ जाओ, मैं उधर बैठ जाता हूँ, आपको सब समझ आ गया। बिल्कुल, थैंक यू वेरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए आपके हाथ और पैरों में, हाथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। यस, थैंक यू, हु सेड इट, प्लीज कम अगेन। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शशि भूषण जी के लिए मैंने आई जस्ट गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, यू कैन आल्सो। सो हाथ और पैर चाहिए सब लड़ने और भागने के लिए सबसे ज्यादा। और उनमें क्या चाहिए? ऊर्जा। तो सब ऊर्जा कहाँ से आती है? वेयर डू वी गेट एनर्जी फॉर अवर बॉडी?
जो भी हम करते हैं उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रीति Mind बत्रा से जी, सर। विनेश कुमार जी, यस प्लीज। मस्तिष्क से सर, दिमाग से। दिमाग से आती है ऊर्जा। ओके डॉक्टर तृप्ति, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? न्यूट्रिएंट्स, अविचल सेड न्यूट्रिएंट्स, थैंक यू वेरी मच। which particular thing from food? Dr. or Nirmala, I agree. Kamal ji, which part of the food? Kamal Barua ji, which part of the food? हवा से आती है, जी, हवा से। हवा से। राजेश लोहानी जी, थैंक यू वेरी मच। अविचल जी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर, थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव सोच में आता हूँ डॉक्टर तृप्ति, मन से और तृप्ति उससे लाएंगे, बट उससे पहले शरीर को तैयार करने के लिए क्या करता है? आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है ये आपके कंट्रोल में है। जिन जिन प्रजातियों में था वो सारी आज जिंदा है, जिनमें नहीं था वो सारी खत्म हो गई। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है फाइट और फाइट। जैसे ही आप किसी अप्रिय स्थिति में फंसते हैं, आपके दिमाग के दो हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, एड्रेनलिन जनरेट होता है, कॉर्टिसोल जनरेट होता है। दिमाग को सिग्नल जाता है कि अप्रिय स्थिति है, लड़ने या भागने की जरूरत है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए हाथ पैरों में। तो जितनी भी शुगर स्टोर्ड है वो पूरी की पूरी आपके सिस्टम में रिलीज हो जाती है। यू गेट योर एनर्जी फ्रॉम शुगर। सुबह खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर मिल जाते हैं, शाम तक खर्च हो जाता है, भूख लगने लगती है। 2 दिन अगर आप नहीं खाना खाएंगे, आपको एडमिट करना पड़ेगा, आपको डेक्सट्रोज की बोतल चढ़ेगी और आप फिट होकर वापस आ जाएंगे। योर बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ढेर सारी शुगर इकट्ठी हो जाती है। अब ढेर सारी शुगर हो गई है, गाड़ी में पेट्रोल आ गया, क्या अब शुगर को एनर्जी में बदलना है, कैसे बदलेंगे? किसी भी चीज को एनर्जी में कैसे बदलते हैं? गाड़ी में पेट्रोल डल गया, क्या पेट्रोल से गाड़ी चल पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा पेट्रोल को? जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। शुगर इकट्ठी हो गई, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इग्निशन करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच जांगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच शशि भूषण जांगड़ा जी। इग्निशन करना पड़ेगा। तो आपका दूसरा सिग्नल आपके फेफड़ों को जाता है कि भैया जरा जल्दी जल्दी सांस खींचो। तो आप जैसी नॉर्मल सांस लेते हैं स्ट्रेस में, आपको पता भी नहीं होता आपकी सांस थोड़ी बढ़ जाती है, सांस लेने की रफ्तार थोड़ी बढ़ जाती है। आप ढेर सारी ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, शुगर इकट्ठी है वो जलने लग गई है। और अगर आप बैठे बैठे ध्यान से देखें तो अगर आपके हार्ट से सबसे दूर कोई 2 अंग हैं तो वो है आपके हाथ और पैर। आपके हाथ और पैर। accelerate your life, we will come to it Dr. Bridge, how do you accelerate your life? बट एक्सेलरेशन के लिए पेट्रोल चाहिए ढेर सारा, कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के एक्सेलरेट हो नहीं सकती। तो शुगर जल गई और वो हाथ पैरों तक पहुंचानी है। अब तीसरा सिग्नल जाता है आपके हार्ट को कि भैया ये शुगर जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, इसे जल्दी से हाथ पैरों तक पहुंचाएं, और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। यहाँ जो ऑलमोस्ट 100 पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, आज एक बात समझ लीजिए कि जिस दिन भी आपको हार्ट बीट अपनी तेज महसूस हुई है, वो इंटरव्यू था, बच्चे का एग्जाम था, घर में शादी थी, किसी का विजिट था, इंस्पेक्शन थी, यू आर नॉट फीलिंग वेल, किसी से लड़ाई हो गई, गुस्सा था, जो भी था, एनी टाइम एंड एवरी टाइम आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी, उससे पहले 2 काम हो चुके हैं। आपकी शुगर बढ़ चुकी है और दूसरा आपका बीपी बढ़ जाता है। हेलो, आपका बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ती है, क्योंकि तेजी से हाथ पैरों तक पहुंचाना है, तो आपका बीपी बढ़ता है और शुगर बढ़ता है। आज के सेशन को याद रखिएगा, 15 सितंबर, टाइम हो गया है, लगभग 11 बज गए हैं। इस बात को याद रखिएगा, आज के बाद जब भी आपके जीवन में आपको हार्ट बीट तेज महसूस हो तो 2 चीजें हो चुकी हैं, अंदर ढेर सारी शुगर इकट्ठी हो गई है और आपके अंदर बहुत सारा बीपी बढ़ चुका है। फिर क्या होता है? किसी ने कहा साहब पसीना आने लगता है। बड़ा सिंपल, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है सर। व्हेन अंदर इतनी सारी शुगर इकट्ठी है और तेज ऑक्सीजन आप खींच रहे हैं और वो जल रही है, बॉडी हीट अप होने लगती है, और बॉडी का नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है स्वेटिंग। तो आप स्वेट करने लगते हैं, वो बॉडी का टेम्परेचर जिससे मेंटेन रहे, आप बेहोश नहीं हो जाए या गड़बड़ नहीं हो जाए, उसके लिए स्वेटिंग है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू लुक केयरफुली व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू स्टोरी, तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हो रही है। शुगर का बढ़ना अच्छा क्योंकि लड़ने के लिए चाहिए, पसीना आना अच्छा क्योंकि हीट अप हो रही है, बॉडी कूल हो रही है, सांस तेज जलना अच्छा क्योंकि आपको शुगर जलानी है तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, बीपी बढ़ना अच्छा क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर तेजी से प्रेशर से पहुंचाना है हाथ पैरों तक ऊर्जा, हार्ट बीट बढ़नी अच्छी क्योंकि वो उस ब्लड को सर्कुलेट कर रही है। तो इसमें बुरा क्या है? हेलो, बुरा क्या है? मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए और सब लोग देंगे, जरा जल्दी जल्दी उस सवाल का जवाब देंगे और
अनम्यूट करके दीजिए, चैट बॉक्स में दीजिए। हम यहाँ 100 लोग बैठे हैं, मैं एवरेज उम्र मान लेता हूँ 101 हो चुके हैं, सैकड़ा लग चुका है, 101 हो चुके हैं और मैं एवरेज अगर 30 इयर्स मान लेता हूँ, नहीं आज कम मान लेता हूँ, आप लोगों को यंग कर लेते हैं, अगर मैं 25 इयर्स भी मान लूं, 2500 साल का अनुभव इस सेशन में अभी बैठा हुआ है। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि वो रात को अकेले थे, पैदल थे और जंगल में थे और सामने शेर आ गया? हेलो, यस या नो टाइप कर दीजिए। किसी के साथ हुआ है तो यस लिखिए, नहीं तो मैं मान के चलता हूँ कि नो 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 नो, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मुकेश जी नहीं हुआ, डॉक्टर निर्मला, डॉक्टर सृष्टि प्रजापति, थैंक यू वेरी मच। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। डॉक्टर तुषार, कमल, मोनिका वर्मा जी, कमल, डॉक्टर तृप्ति, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। तो 2500 साल में ये घटना कभी भी नहीं घटी। हो सकता है एक आध किसी के साथ ऐसा हुआ हो। थैंक यू निर्मला जी। निर्मला जी ने आज भी शेर आते हैं, वो कोट पट पहन कर आते हैं और बॉस बनकर आते हैं, और ये वो शेर हैं ना जिनको आप डंडा मार सकते, ना जिनसे दौड़ के पेड़ पर चढ़ सकते। वो बुलाते हैं और आपकी धूल निकालते हैं। क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें कहा था ना, ये पूरा नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं आई, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया। आप चुपचाप सहते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपकी बॉडी फर्क नहीं जानती। आज आप एक और बात समझ लीजिए, अर्चना जी, उपासना जी, पटेल जी, पुष्पा जी, शिवा जी, प्रकाश जी, डॉक्टर रमेश, प्रीति बत्रा जी, सब, मनीषा वर्मा जी, आपकी बॉडी फर्क नहीं जानती। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बॉस आपकी धूल उतार रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, घर में ऑपरेशन होना है, मैरिज हो रही है, किसी से झगड़ा हो गया है, काम अधूरा रह गया है, टाइम कम पड़ रहा है, इंस्पेक्शन होने वाली है। बॉडी ये जानती है कि ये सिचुएशन जो है, बच्चे का इंटरव्यू होना है, उसकी एडमिशन होनी है, हस्बैंड से कहा सुनी, लाइफ स्पाउस से, पार्टनर से लाइफ कहा सुनी हो गई है। आपकी बॉडी फर्क नहीं जानती। वो कहती है ये सिचुएशन अप्रिय है, आई डोंट वांट, दिस इज अनवांटेड सिचुएशन, और वो एक ही तरह से रिएक्ट करती है। हेलो, एक ही तरह से रिएक्ट करती है। आपकी बीपी बढ़ाती है, आपकी शुगर बढ़ाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है किसी भी ऐसी घटना में। और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अंशु जी, उपासना जी, रमा जी, एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली। स्ट्रेस के दो हिस्से हैं, आप सबको पता है, मैं इसलिए आपको बोर नहीं करूंगा, मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूँ इवेंचुअली। पहला है यू स्ट्रेस, अच्छे वाला स्ट्रेस। वो कौन सा स्ट्रेस है अच्छे वाला? जो थोड़ी देर के लिए होता है, कोई घटना है, कोई ट्रिगर है, वो ट्रिगर जब तक है तब तक स्ट्रेस है। मान लीजिए कल इंटरव्यू होना है तो रात भर नींद नहीं आएगी, सुबह ट्रेन पकड़नी है, जल्दी जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, बेचैनी बनी रहेगी, समय से पहले 2-4 बार नींद खुल जाएगी। इंटरव्यू हुआ, स्ट्रेस खत्म। डायस पे चढ़ के कहीं एड्रेस करना है, मन बेचैन है, घबराहट है, टांगे कांप रही है, लेकिन आप बेचैन होते हैं तो होता है नींद नहीं आती है, आप तैयारी अच्छी कर पाते हैं। इट प्रिपेयर्स यू, इट इज ए गुड स्ट्रेस। बच्चों का एग्जाम है, उनको एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, EUSTRESS, यू स्ट्रेस, which is a good stress, which help you to get ready for the difficult position, which helps you get ready to overcome that situation। वो इंटरव्यू हो सकता है, वो एडमिशन हो सकता है, वो ऑपरेशन हो सकता है, कोई डिफिकल्ट टास्क या कन्वर्सेशन हो सकती है, उसके लिए यू स्ट्रेस आपको तैयार करता है। जैसे इंटरव्यू खत्म, ऑपरेशन खत्म, इंस्पेक्शन खत्म, स्ट्रेस गायब। लेकिन अब मेरी बात को 104 लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि आपको दिनों दिन ऐसी स्थिति बनी रहती है कि आपको स्ट्रेस बना रहता है, आपका मूड खराब रहता है, आप कई कई दिन स्ट्रेस में बने रहते हैं, तो आप डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारा शुगर इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारा बीपी इकट्ठा कर रहे हैं। एक दिन आपके लाइफ पार्टनर आपको 40, 45, 50 की एज में डॉक्टर के लेकर जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि आप, और अगर आपने इसका कुछ किया नहीं, स्ट्रेस का आज नहीं सीखा कि क्या करना है, अगर आपको 8-8, 10-10 दिन स्ट्रेस बना रहता है किसी भी वजह से और आपने उसे प्रॉपर हैंडल करना नहीं सीखा, तो 40, 45, 50 साल की उम्र में कोई लाइफ पार्टनर डॉक्टर के पास ले जाएगा और डॉक्टर कहेगा सर आपको डायबिटीज हो गई है या आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए हैं। दुनिया के 102 सबसे बड़े किलर, दे आर द क्रिएटेड बाय स्ट्रेस इन आवर लाइफ। So this is important that you learn. It's not about quality education only, it's about quality life, it's quality self, it's quality family time, it's quality professional time, it's quality education, of course, because we are in teaching. I will come to that, but as of now आप समझ लीजिए, you have to learn to handle stress.
एंड स्ट्रेस का इनएविटेबल है, इट डजंट बॉदर, वो कास्ट कलर क्रीड नहीं देखता है, किसी को भी आ सकता है। ये बिल्कुल आसक्ति जैसी है, जो किसी को भी आ सकती है, वैसे ही स्ट्रेस है, किसी को भी आ सकता है, आता ही है। इनफैक्ट स्ट्रेस जीवन में रंग भरता है। स्ट्रेस, कमल जी मैं आपको बता के जाऊंगा, उस तरह से कीजिएगा, आपको मजा आएगा। तो बेमतलब का स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस चाहिए थोड़ा सा, अच्छा है स्ट्रेस। आप सोचिए, आपकी, मैं कहता हूँ सभी 108 लोग जो सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है, ना खाने का, ना उठने का, ना नौकरी पे जाने का, ना पढ़ाने का, डाटा का, ना बच्चों को भेजने का, ना अपने स्पाउस के लिए कुछ का, कोई स्ट्रेस नहीं। बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाएगी सर। यू विल बिकम, मैडम यू विल बिकम अ वेजिटेबल। थोड़ा सा स्ट्रेस जिंदगी में रंग भरता है। मैं तो कहता हूँ आप सबको याद कीजिए, लास्ट टाइम आप कहीं घूमने गई थी उपासना जी, डॉक्टर राजेश आप कहीं गए थे, राशिद भाई आप कहीं गए थे, अर्चना नायक जी, वो कौन सी घटना याद करेंगे? वही घटना याद आएगी जिसमें थोड़ा स्ट्रेस हुआ था। एक बार हिमाचल घूमने गए थे, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, गाड़ी पंचर हो गई थी, रात को 2 बजे अटक गए थे, ट्रेन छूट गई थी। Those beautiful memories are created, that colorful threads in the tapestry of your life come from the stress. Stress is a must. ये बिल्कुल वैसा ही है, सितार की तार अगर या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तार ढीली हो तो उससे म्यूजिक नहीं निकलता, थोड़ी कसी भी हो तो म्यूजिक निकलता है। बहुत टाइट कर देंगे तो टूट जाएगा, बहुत ढीला छोड़ देंगे तो म्यूजिक नहीं निकलेगा। Same applies to your life. Little stress brings about best of you. It makes your life worth, I mean, music, it makes your life worth living. थोड़ा स्ट्रेस आपकी जिंदगी में रंग भरता है। सिर्फ उतने की बात करेंगे और उससे ज्यादा जो है उससे कैसे निपटेंगे, उसके लिए बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप सब लोग मेरे सेशन को आगे सुनने के लिए तैयार हैं, इफ यू वांट टू नो द टिप्स एंड टिप्स एप्लीकेबल इमीडिएटली, लफाजी नहीं, मतलब ऐसे कि जो आप सेशन खत्म होते ही लगाना शुरू करें कि यार आ गया था, तो प्लीज एक बार हाथ उठा दीजिए या चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए यस इफ यू वांट टू नो कि क्या करने की जरूरत है। थैंक यू उपासना जी, आई कैन सी योर हैंड। थैंक यू, थैंक यू जो हाथ, थैंक यू इंजीनियर साहब, थैंक यू शशि भूषण जी, थैंक यू एवरीवन। और बाकी लोग, यस अमृता गोहल जी का हाथ उठा दिया, अंशु मिकलानी, एवरीवन एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई नो यू आर रेडी। Thank you, thank you, thank you, Narayan Srivastava ji. Thank you, everyone. And if you stay on cameras, that gives you more energy. Thank you, Prem Latha ji, Priya ji, Manisha Baba ji, everyone, all of you. तो चलिए आइए स्ट्रेस को निपटना शुरू करते हैं। 5 participants have raised their hands and others are waiting to raise their hands. सेशंस में ऐसा ही होता है साहब, आप सब तो गुरु हैं, टीचर हैं, पता ही है। बच्चों से पूछो, हाँ भैया हाथ उठाओ, तो कई लोग तो यहाँ तक हाथ उठा देते हैं थोड़ा सा, फिर पड़ोसी देखता है इसने यहाँ कंधे तक उठा दिया तो इतना उठा देता है, फिर तीसरा यहाँ तक उठा देता है। तो दिल से हाथ उठाइए, जुड़े रहिए। वेलकम डॉक्टर बीस। तो आइए हम सेशन की जल्दी से शुरुआत करते हैं और स्ट्रेस की बाट लगाते हैं। तो स्ट्रेस के, तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम स्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। डिस्ट्रेस नहीं, डी स्ट्रेस। तो लेट मी टेल यू हाउ टू हैंडल इट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो मैं एक छोटी सी पीपीटी शेयर कर, हालांकि मुझे आदत नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू लर्न। प्लीज बियर विद मी, आई एम क्लिकिंग द राइट बटन एंड आई एम होपिंग कि मैं आपको वो दिखा पाऊं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये रहा, आई होप ओके, आई थिंक इट इज। अगर विजिबल है तो मुझे बोल दीजिए, नहीं आ रहा है तो वो बोल दीजिए। कैन यू सी एनी पीपीटी? Sir, it is opening. It is taking time, okay? Yes, sir. It is paused somehow. कुछ गड़बड़ हो रही है, सब बुरा मान रही है ये। Let me try again. Can you see it now? Yes, sir, it is visible. Oh, perfect. Thank you very much for saying that. तो आइए हम जरा सा स्ट्रेस की कहानी समझे। पहली बात तो स्ट्रेस इज इनएविटेबल, डिस्ट्रेस इज नॉट। मुश्किलें आएंगी, डिस्ट्रेस करना है या नहीं ये आपके हाथ में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये आपकी जरूरी चीज नहीं है। यू शुड डी स्ट्रेस, आई की बजाय अपन एस लगाए, ई लगाएंगे और डिस्ट्रेस हम समझे। हाउ टू डी स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इनएविटेबल। थोड़ा कलर चाहिए जिंदगी में तो चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, आप परवाह नहीं करते। आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी सेक्स के हैं, किसी भी जगह है, किसी भी ऑक्यूपेशन में है, द स्ट्रेस इज कम, यू ओनली नीड टू लर्न। मैं एक और मिथ को क्लियर कर देता हूँ। We will not do much about the stress. It's not stress management. It's all about self management. मैं एक छोटी सी एक्टिविटी भी कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, तो हम इसको स्ट्रेस को निपटेंगे और बड़े बेहतरीन ढंग से निपटेंगे। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ही तय कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना स्ट्रेस है।
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस आदमी को आप सुन रहे हैं आप उसको इस बात को समझ लीजिए कि ऑथेंटिकली आई हैव सीन द एक्सट्रीम ऑफ स्ट्रेस. I have seen that extreme of stress where I tried to commit suicide and I have come back. And now I'm telling lakhs of people how to really handle it. So what I'm going to tell you is a lot coming from my experience and a lot coming from people like you who have taught me. तो क्या stress है? Stress कुछ भी नहीं है सब. जीवन में जब भी कोई घटना घटती है ऊंची नीची जो हम नहीं चाहते हो, वो हमारे रिश्तों में हो, वो हमारी जॉब पर हो, हमारी सोसाइटी में हो, वो हमारे सिबलिंग्स कहीं भी हो, तो कुछ दिमाग में वियर टियर होने लगता है, उम्र से पहले झुर्री आने के चांस बनने लगते हैं. बदलते हालात हैं और रोज बदल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं. और उनसे कॉप अप करना, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे जूम सीखना हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम सीखनी हो, न्यू नॉर्मल के बारे में सोचना हो, बच्चों के घर से जाने की नावट, कोई भी चीज हो दैट कॉज स्ट्रेस, तो हमें उससे सीखना ही पड़ेगा. मैं जल्दी से आपको करवा देता हूँ, ये लंबी चौड़ी पीपीटी दिखाऊंगा ना. 4 चीजें. स्ट्रेस गेट्स यू नट, देयर आर 4 ingredients, NUTS. लेट मी टेक यू वन बाय वन. फर्स्ट, नोवेल्टी. Anyone can guess कि नोवेल्टी से क्या स्ट्रेस आता है? Anyone can answer? नोवेल्टी से क्या पंगा पड़ता है भाई? राजीव सर. जी. सर, आई एम नॉट श्योर बट आई ट्राई टू आंसर. जब भी कोई नई चीज होती है हमारे लाइफ में, तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में थोड़ा पहले हेजिटेट करते हैं. देयर इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक, that we don't want to accept that this is the novelty in our life which we should accept. Thank you very much. And Yes, one a more round of thing, applause. sir. Thank you. Yes. The unique to acquaint with that, we will be taking some time to get habituated to that. Meanwhile, we will be losing something and gaining something, but long-term benefit will be there with novelty. Thank you. Definitely. Definitely. The initial limitations will be there, but if we get adapted slowly, step by step, we will be benefited, like how with computerization, technology, all that we have once upon a time, we objected that, but today we are not able to live without that. Perfect. Thank you very much. That's what. तो आपने सवाल का जवाब भी दे दिया और मैं आपको जल्दी से 2-3 बातें और बता देता हूँ बिफोर आई गो टू दिस. मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो अगर आपकी जिंदगी में, सब लोग इस बात का जवाब दीजिए, छूट गया मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, आप गुरु लोग हैं तो मैं थोड़ा सा अनगढ़ गुरु हूँ. तो मैंने कहा था कि स्ट्रेस जब भी हार्ट बीट बढ़ती है तो उस वक्त आपको आज ये तय हो चुका है 15 सितंबर 11:15 बजे कि उससे पहले शुगर और बीपी बढ़ चुकी है. तो अगली बार जब आपके जीवन में हार्ट बीट बढ़ेगी और शुगर को हमने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो हम डायबिटिक के पेशेंट हो जाएंगे. तो करने की क्या जरूरत है? तो क्या करना चाहिए हमें? उसका जो हार्ट बीट बढ़ाने का रीजन है उसको स्लोली ओवरकम करना चाहिए. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, सुनिए, बिल्कुल सिंपल है सर. आपको शुगर को छोड़ना नहीं है, उसको ना, शुगर को जो आपके अंदर इकट्ठी हो गई है उसको कंज्यूम कर लेना है, उसको कंज्यूम कर लेना है. क्रमबद्ध पर आऊंगा मुकेश जी, अभी आता हूं मैं, जस्ट 2 मिनट रुकिए, बस आपकी बात के ऊपर आ ही रहा हूं मैं. मेरी सब लोगों से, जो ऑल दी 108 पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, बड़ा सुंदर नंबर है सर 108 हिंदुस्तान के लिए. तो जो मेरे को सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लीजिए, आज के बाद जब आपको अपनी जिंदगी में किसी दिन हार्ट बीट तेज महसूस हो, शाम को घर आइएगा, जान लीजिएगा कि शुगर इकट्ठी हो गई और इसे मुझे कंज्यूम करना है. तो कुछ भी कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, जंपिंग कीजिएगा, ब्रिस्क वॉक कीजिएगा, साइकिलिंग कीजिएगा, ट्रेडमिल पर चढ़िएगा, सीढ़ियां चढ़िएगा उतरिएगा, वॉकिंग कीजिएगा, कुछ भी ऐसा कीजिएगा कि जिससे वो शुगर जल जाए. आप अपना बहुत बड़ा भला करेंगे, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा भला करेंगे. यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ इफ यू डू. तो आज के बाद दिमाग मत लड़ाइएगा, जिस दिन आपको हार्ट बीट तेज महसूस हो मेरे सेशन को याद कीजिएगा और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा कि वो शुगर कंज्यूम हो जाए. और उसका पैरामीटर भी बता देता हूं. मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं सर मैं तो रोज घूमता हूँ, पेट कम नहीं होता या वजन कम नहीं होता. मैंने, बेटा 5 किलोमीटर रोज घूमता हूँ. मैंने कहा तू 500 भी घूमेगा ना, ये जो तू घूम रहा है इसे घूमना नहीं कहते, ये टहलना है, धीरे धीरे अटल मटल करते हुए. एक्सरसाइज वो कामयाब है, वो आपकी शुगर जलाएगी जो आपको 10 मिनट में आपको ऐसी फीलिंग आने लगे और हल्का सा पसीना आ जाए. दैट यू हैव टू डू टुडे ऑनवर्ड्स. एनी टाइम आपकी हार्ट बीट तेज हो, प्लीज शाम को जाके कुछ ना कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे आपको हल्का सा पसीना आ जाए. ऐसे एक्सरसाइज कीजिएगा, आप अपना बहुत बड़ा करें, यू विल लिव ए हेल्दी लाइफ.
जो रोज एक्सरसाइज करते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे कैन बी हैप्पी, दे कैन हैप्पी। सो दैट वाज वन। फर्स्ट थिंग इज यू ऑल नीड टू डू सम एक्सरसाइज जो आपकी हेल्थ परमिट करे, हार्ट परमिट करे, बट उतनी जरूर करनी है कि सांस थोड़ी तेज हो जाए और आपका हल्का पसीना आ जाए। आइए, थैंक यू वेरी मच। कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, नट्स। सो नॉवेल्टी, थैंक यू वेरी मच। जब तक उससे एडजस्ट नहीं होते तब तक स्ट्रेस है, और जब एडजस्ट हो गए तो स्ट्रेस खत्म। वो नॉवेल्टी बच्चों के बगैर रहना हो, वो कोई नया डिपार्चर हो, वो ब्रेकअप हो, वो जुड़ाव हो, वो नया टेक्नोलॉजी सीखनी हो, कंप्यूटर सीखना हो, जूम सीखना, कुछ भी, एनी न्यू सिस्टम will cause you novelty, will always cause stress. So second is, thank you very much. A round of applause for all these people here. You can always write in clap box that clap, or you can show them. Second is unpredictability. What is unpredictability? Uncertain, not Uncertain. sure of happening the thing. Thank you very much, sir. Sir, आप इधर आ जाओ, मैं बैठ के सुन लेता हूँ आपको। Thank you very much. Uncertainty we cannot. Unpredictability. You don't know what is when and what is going to happen. Result आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लड़कों के बच्चे स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, कब जाएंगे पता नहीं है, कुछ डिस्कशन तो चल रहा है। These kind of things keep on causing stress in your life. So novelty, unpredictability, and third is threat to your ego. Anytime a finger is pointed to you, you are under stress. यार तुम ठीक से काम नहीं करती हो, तुमने रिपोर्ट नहीं करी, इमीडिएटली वी बिकम डिफेंसिव। या बॉस, नया बॉस आया, उसने कहा यार तुम्हारा ये काम करने का कौन सा ढंग है भाई, ये मुझे समझ नहीं आता है। इमीडिएटली इट कॉजेस स्ट्रेस इन अस। या टीचर लगे यार तुम बच्चों पे ध्यान नहीं देती हो क्या पढ़ाने के लिए, क्या नंबर ला रहा है, इमीडिएटली यू गेट इट। एनी टाइम हिज फिंगर इज पॉइंटेड टू अस, वी फील थ्रेटन्ड, आवर ईगो गेट्स अनसर्टेन, अनईजी, और वो थोड़ा सा immediately it causes stress in us. And finally, sense of control. This is super, this is super, this is most important. आप समझते हैं सर सेंस ऑफ कंट्रोल क्या सब लोग? Anyone can tell me? प्रेमलता जी, नेहा काम्बो जी, anyone can anyone tell me कि क्या है sense of control? Sir, sense of control, can I answer? हाँ, please go ahead. Sir, sense of control is when we are in a hurry, how we have to balance the situation and get through over that, instead of showing our emotion, instead of losing our patience. That is sense of control. All right, thank you very much. Kalpana ji, Premlata ji. Thank you sir, thank you so much. Sir, may I speak? जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती है, व्हाटएवर, छोटी बड़ी, उसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारा रिस्पॉन्स या हमारे ही हाथ में होती है। So I think that is somewhere sense of control. मिस होने लगता है। All right, thank you. प्रेमलता जी, thank you कल्पना जी, thank you very much. Premlata Shetty ji, you wanted to say something? Sir, it's keeping our sense in our control. Instead of losing our control from our balance, we need to keep our sense in our control. All right, thank you very much. So keeping senses in control. There is a lot of answers in chat box also. So let me see what are the answers. Thank you Nirmala ji for your appreciation right away. And okay, Dr. Tripti, इच्छाओं पर नियंत्रण. Dr. Tripti, इच्छाओं पर नियंत्रण की बात नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ. Thank you very much. Please listen to me carefully. जब आप पैदा हुए तो आप इतने से थे. अरे ये तो क्या Request someone to mute themselves. Premlata ji, please mute yourself. Okay, कोई और होगा. चलिए जान दीजिए. जब आप पैदा हुए इतने से थे तो, या आपके बच्चे इतने पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए होंगे तो कम ज्यादा हो सकते हैं. तो थोड़े बड़े हुए, 4 से 8 महीने के हुए, तो एक दिन वो दहाड़े मार के रोए, तो आप दौड़ के गए, तो या तो वो गीले थे बच्चे या फिर भूख लगी थी. एज ए मदर और फादर यू अंडरस्टूड इट, आपने उनको दूध फीड दिया या क्लीन किया, और ऐसा 2-4 बार किया. और फिर एक दिन वो बच्चे ने समझ लिया कि मेरे रोने में और माँ के आने में कनेक्शन है. आई कैन कंट्रोल दिस वुमन बाय क्राइंग, नो इवन विदाउट, आई मीन, अब वो बड़ा नहीं हुआ, और आप समझिए वहां से सीखा हम सब ने ये. फिर एक दिन वो टीवी देख रहा था, माँ ने आके कहा बेटा दूध पिएगा. अब वो 5 फुट 2 इंच 3 इंच की माँ बेचैन होती, दूध पिएगा मेरा बेटा, गाने चलाओ, गोविंदा का गाना लगाओ, नीन टुकले पिन टुकले मेरा छुनछुना बजा रहे हैं. उसने ये देखा, यार मैं जरा सी मुंडी हिलाता हूँ, ये 5 फुट 3 इंच की औरत दीवानों जैसी हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती. उसने और भी छोटी छोटी चीजें सीखी लोगों को कंट्रोल. कभी एक बॉल या चाबी नीचे फेंक दी, किसी ने उठा के ऊपर डाल दी उसे वापस.
उसने कहा गेम बन गई, उसने दोबारा फेंकी, फिर उठाई, तो कंट्रोल करना सीखना शुरू किया उसने, बड़ा मजा आने लगा उसे। उसने कहा एक दिन कंट्रोल को चेक करते हैं, ये रोने से दौड़ के आती है माँ, उसने बिना वजह रोना शुरू किया। माँ दौड़ के आई, देखा कुछ भी नहीं था, ना गीला था ना भूखा था, खाना तो अभी खिलाया था, पेट में दर्द था, देखा कुछ नहीं हो रहा है। 2-4 बार ऐसा हुआ तो माँ समझ गई। एक दिन वो रोया, माँ नहीं आई, बच्चा रोया नहीं आई, तो और जमीन पे लेट के दहाड़े मार कर रोया जब तक वो आ नहीं गई, क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ने लग गई, क्योंकि वो सेंस ऑफ कंट्रोल उसकी खत्म हो गई। हम सब, और वो दिन से आज तक हम बहुत सारी चीजों को लाइफ में, रिश्तों को, जॉब को, स्टाफ को, कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, पीयर्स को, स्टूडेंट्स को, वी वांट कि वो चीजें हमारे कंट्रोल में रहे, और जैसे ही कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल महसूस होती है, आहा, स्ट्रेस शुरू होना शुरू, अरे बाप रे, स्पाउस कंट्रोल में नहीं है, बेचैनी, ये हालात, फैमिली कंट्रोल में नहीं है, जॉब कंट्रोल, एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग आउट, आई मीन इट स्टार्ट्स। Folks, you need to understand this. आप सब ज्ञानी गुणी लोग हैं, extraordinary लोग हैं, but with my little knowledge, let me share with you. There are two kind of things that you need to understand. One which are not in control, and second which are in your control. Flight late होगी या नहीं, ट्रेन टाइम से आएगी या नहीं, आपको बहुत जल्दी और आप जाम में फंस गई हैं, आप कितना भी स्ट्रेस कर लीजिए कुछ नहीं हो सकता, कितने भी हॉर्न हॉन्क कर लीजिए, गाली दे लीजिए, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। किसी, मैं बहुत, आई मीन क्लिनिकल साइकोलॉजी, आई एम हेल्पिंग, आई हैव, मैंने 50-100 तलाक बचा दिए, सिस्टम में मेरे बचे हुए हैं, 10-20 सुसाइड बचा चुका हूँ, लोगों को बचा चुका हूँ कि लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, जॉब फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू लिव फुल, आई मीन दैट आई हैव बीन टेलिंग पीपल लास्ट 20 years, एंड आई कैन टेल यू, यू नीड टू, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसका स्ट्रेस लेना बंद। यार फ्लाइट लेट होगी, उसमें टेंशन करने से क्या होगा, बच्चे की कोई तबीयत खराब हो रही है, आपके हाथ में नहीं, अगर बच्चे की कोई डिफंक्ट है, कोई दिक्कत है, don't worry, there are ways of doing the things, but stop worrying about the things that you don't control, worry about the things that you can and you are not doing। वहां करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है मैं उसके ऊपर आऊंगा, बट ये 4 चीजें अभी आप समझ लीजिए। नट्स, दे create nuts out of you, they make you nuts, these 4 things: novelty, uncertain, unpredictability, threat to your event, sense of control। हम सारी जिंदगी कंट्रोल करें, बच्चे कंट्रोल में रहे, बच्चे नहीं सुनते, ओ मेरे पास इतने केस है माँ बाप बच्चों के, टीनेज बच्चों के, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। और आजकल तो माँ बाप आते हैं तो कहते हैं सर बच्चे की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ तुम बैठो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, बात नहीं सुनता है, जरा जरा बात पर बहस हो जाती है, रोज लड़ाई होने के चांस बने रहते हैं, कमरे में बंद हो जाता है, मोबाइल चलाता रहता है, किससे बात करता है, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं लगता है, कब मूड खराब रहेगा, कब अच्छा समझ नहीं आता है, बड़ी दिक्कत है। अरे सर आपको कैसे पता, मैंने कहा भैया 90% माँ बाप और बच्चों की यही समस्याएं हैं, और माँ बाप की समस्या है कि दे आर लूजिंग द सेंस ऑफ कंट्रोल, और उनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है कि पता नहीं अब बच्चों का क्या होगा, मैं तो इसकी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता हूँ, बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, and it is causing a lot of stress in their family, in their relationships, in themselves. So these are the things, but we'll see how to really go about it. एक टिप मैं आपको दे चुका हूँ कि वो है कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो जिस दिन हट। सो हाउ कैन यू डू, देयर आर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ढंग हैं। टीचर्स के लिए मैंने अलग से एक पीपीटी बनाई है, छोटी सी, एक 4 स्टेप फार्मूला आपको बता के जाऊंगा, हाउ कैन यू हैंडल दो स्ट्रेस। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू डू ए स्मॉल एक्टिविटी। सब लोगों के पास घड़ी हो तो घड़ी तैयार करके रखिएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने स्ट्रेसर्स को जानिए। हम सब एक चीज से एक बराबर स्ट्रेस नहीं लेते, हम सब एक चीज से एक जैसा स्ट्रेस नहीं लेते। मैं 1 सेकंड के लिए शेयरिंग बंद करूंगा एंड देन आई विल कम बैक टू यू बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आई वांट टू डिस्कस विद यू। आप सबके कैमरों पे चेहरे देख के मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करना चाहता हूं और फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। तो आई विल स्टॉप शेयर फॉर ए सेकंड सेशन एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। तो प्लीज एवरीवन ऑन कैमरा, पारुल जी, अनु जी ऑलरेडी हैं, उपासना जी, एवरीवन ऑन कैमरा। सुनिए, एक और कहानी सुनिए और फिर आपको मैं बताता हूँ कि स्ट्रेस आता कहाँ से। तो मुझे ये बताइए जल्दी से, पीयूषा जी की स्ट्रेस कहाँ से आता है? Which part, who gives you stress? कंचन भाटिया जी, who gives you stress? Thank you, welcome Dr. कंचन भाटिया, good to see you here. आपकी वजह से मैं इतने महान लोगों से आज मिल रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए कंचन जी आप अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। Cannot hear you कंचन जी। Okay. अर्चना नायक जी। सर स्ट्रेस हमारी सोच से आता है।
अर्चना नायक जी ने कहा सोच से आता है, थैंक यू वेरी मच। एनीवन इन चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है, स्ट्रेस इज द इनर फीलिंग, यस सर यू आर राइट डॉक्टर बालू, यू आर परफेक्टली राइट। मैं भी गलत लोगों में आ गया हूँ। सेल्फ क्रिएटेड वरीज, स्ट्रेस कम्स फ्रॉम वरीज, स्ट्रेस क्रिएटेड वरीज। ओके, वरीज के लिए तो हमने निपट लिया, जो अपने हाथ में नहीं है उनकी छोड़ दीजिए। वरी इज अ टेनेंट विदाउट रेंट इन योर हेड। ये साला बैठी रहती है, जाती नहीं है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, एक कहानी सुनाता हूँ और मुझे ना आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फिर आपको जो मैं बनाऊं वो बनते चलिएगा। मुश्किल से 2 मिनट की कहानी है पर आप समझिए, दिस इज ए वंडरफुल। अर्चना नायक जी के लिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार अप्लॉज दे दें उनको। गुड जॉब अर्चना जी। और दूसरा जो आप किसने दिया था, आप ही ने दिया था शायद, यस, और दूसरा पीयूषा जी ने शायद दिया था। ऑलराइट, मोनिका जी, फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक यू मोनिका जी। अभी बताता हूँ कि एक्शन कौन से चाहिए और रिएक्शन कौन सा चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो गुड गुड गुड, एवरीवन स्टे ऑन कैमरा प्लीज। समझिए, 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ पढ़ते खेलते हर वक्त साथ रहते थे। मतलब इतने अच्छे दोस्त थे कि साथ खाना, नहाना ज्यादा हो गया, साथ एक दूसरे के घर चले जाते थे, रात को वहीं सो गए, सुबह वहीं से पाठशाला चले गए। बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ साथ पढ़ रहे थे। एक आप जैसे बड़े अधिकारी प्रोफेसर का बच्चा था, एक मेरे जैसे डोलड्रम वाले व्यापारी का बच्चा था। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो इसका शोरूम वाले का बेटा था और एक प्रोफेसर का बेटा था। दोनों पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े। शोरूम वाले का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था, जैसा मेरा था, कभी नहीं था पढ़ाई में ध्यान रहा। तो दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। तो जब बड़े हुए तो आपस में 12th में जब पहुंच गए, तो शोरूम वाला जो बच्चा था बड़ा मिलनसार था। मैं आपको एग्जांपल दे, मतलब वो ऐसा बच्चा था कि वो शोरूम पे चला जाए तो सेल्समैन खुश, मैनेजर खुश, ग्राहक खुश, सब लोग बड़े खुश हो जाए, मजा आ जाए। डीप थिंकिंग, पीयूषा जी आई विल टेल यू, ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग से भी ज्यादा, बट लेट मी। तो बड़ा मिलनसार बच्चा था, शोरूम पे चला जाए सब लोग, स्टाफ भी खुश, मैनेजर भी खुश, ग्राहक भी खुश। एग्जाम्पल देके बताओ, मान लीजिए वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और उसने देखा कि साहब बाहर से मोहम्मद राशिद जी खड़े हुए हैं धूप में, तो कहेगा अंकल आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना, 2 मिनट एसी में बैठिए। बेटा मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, 5 बजे तक बंद हो जाएगी। अंकल आप 2 मिनट अंदर आइए, पानी पी लीजिए, थोड़ी ठंडी हवा खा लीजिए, फिर चले जाइएगा, स्कूटर से छुड़वा दूंगा, आप ले बंद नहीं होगी यूनिवर्सिटी। आप समझ गए ना, बड़ा मिलनसार, गुड समैरिटन काइंड ऑफ बॉय। तो दोनों जब 12th में आ गए तो दोनों एक दूसरे से पूछने लगे तू क्या करेगा। शोरूम वाले ने कहा भैया अपन तो शोरूम पे बैठेंगे, अपने बस की पढ़ाई नहीं है, तूने कैसे कैसे पास करवा दिए, काम खत्म, अब नहीं। तो कहे ठीक है मैं तो आगे पढ़ाई करूंगा। तो मेरे बाप ने तो कह दिया बेटा एग्जाम दे, पीएससी दे, कहीं प्रोफेसर, कहीं एसडीएम, कुछ जाके लग, बड़ा अधिकारी बन। तो कहता ठीक है दोस्ती तो पक्की है। तो ये अपने घर गया प्रोफेसर का बेटा और ये शोरूम वाला अपने शोरूम पे पहुंचा और पापा को जाके बोला डैड कल से मैं शोरूम पे बैठेगा। क्यों शोरूम पे बैठेगा भाई तू? पापा मेरे को शोरूम पे मजा आता है ना, मैं पैसे कमाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है, मैं कमा रहा हूँ ना पैसे, तेरे को क्या मतलब है? पढ़ाई नहीं करनी तुझे? पापा मेरे साथ पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे से नहीं होगी। क्या फालतू बात करता हो, नहीं होगी, कोशिश तो करो। पापा मेरे से नहीं होगी। यार देखो शोरूम कहीं भागा नहीं जा रहा, मैं अभी कमा रहा हूँ, तुम जाके एग्जाम दो, 1-2 एग्जाम दो, कॉम्पिटेटिव नहीं होगा तो आके बैठ रहे, शोरूम कहीं भागा जा रहा है। डैड मुझसे नहीं होगा, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए एग्जाम दीजिए, कोशिश तो कीजिए, बिना कोशिश के नहीं, हारने की जरूरत है। नहीं होगा तो आके शोरूम पे बैठना है, शोरूम कहीं भागा नहीं जा रहा है। एग्जाम में पास नहीं होगा तो आ जाना शोरूम पे, लेकिन कोशिश तो करो। और अब इस पे फर्दर बहस करने की जरूरत नहीं, पीरियड। वंस डैड सेड पीरियड तो बात ही खत्म हो गई। तो वापस दोस्त के पास पहुंचा, प्रोफेसर के बेटे पास, क्या कर रहा है? कोचिंग ले रहा हूँ। कहाँ? फला जगह। मैं भी चलूंगा। क्यों? तू तो कह रहा था शोरूम पे बैठो। अरे बाप ने कह दिया जाके मेहनत कर, कोशिश कर, एक बार एग्जाम दे, नहीं होगा तो आके बैठना। जुड़े रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो दोनों दोस्तों ने साथ, मैं भी चलूंगा कोचिंग कल से, तो दोनों ने साथ मिलके कोचिंग करी और एग्जाम दिया और मेहनत करके एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले ये प्रोफेसर साहब का बेटा पहुंचा और उसने जाकर वहां रिजल्ट देखना शुरू करा। यार फेल, कहीं लिस्ट में नाम नहीं, पीछे चल दिया कॉलेज के। वो तो चौकीदार ने पकड़ लिया, नहीं तो क्या पता सुसाइड कर लेता। थोड़ी देर में ये शोरूम वाले का लड़का आया और वहां पे उसने रिजल्ट देखना शुरू करा। मजा आ गया, फेल हो गए, क्या बात है, ऐश हो गई। हेलो, मेरा सवाल आप सबसे ये है, दोनों के साथ एक ही घटना घटी, दोनों फेल हो गए, दोनों के रिएक्शन में इतना फर्क क्यों है? आई वॉन्ट आंसर टू दैट।
दोनों के साथ एक ही घटना घटी, दोनों फेल हो गए, दोनों के रिएक्शन में इतना फर्क क्यों है? Good morning, sir. Can I answer? Yes, please. You don't have to say good morning. Go ahead, Priya ji. Yes, my name is Dr. Priya Darshni. So actually, this is our perception towards reality. Like अभी COVID-19 के कारण भी लॉकडाउन लगा था, तो कुछ लोग काफी स्ट्रेस में थे कि हम बीमार ना हो जाए, हमारे नियर एंड डियर को कुछ ना हो जाए, हमारी जॉब सिक्योरिटी। वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिया कि अभी हम घर में हैं तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, हम थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जो काम हम नहीं कर पाते थे बिजी रूटीन में वो काम हम कर सकते हैं। लोगों ने अपनी हॉबी परस्यू करी, तो Okay. इट्स अप टू अस परसेप्शन। परसेप्शन, थैंक यू वेरी मच। मैं और इसको थोड़ा डीप लेके जाना, बट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रिया जी। थैंक यू प्रिया जी। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिविटी डिफरेंट है, फियर कुछ ने कहा, एक का फियर दूसरे का नहीं था। मैं इस सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ और प्लीज इसका अब दोबारा आंसर कीजिए। मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग अभी हैं, ऑलमोस्ट 120 ऑफ यू ऑल आप बन जाइए उस प्रोफेसर के बेटा बेटी who prepared the exam, tried for it and he has just failed. You are son or daughter of a professor, you have just failed. What are the thoughts that are coming in your mind? Just those thoughts. I want exact thoughts कि ये मन में आएगा। जवाब दे दीजिए अनम्यूट करके या टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? लोग क्या सर मैं आई आप प्लीज बोलते रहिए। लोग क्या और कहेंगे? सर सोसाइटी का प्रेशर तो होता है सर, फिर पीयर प्रेशर भी है कि अदर दोस्त लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे? हाँ, तो पीयर प्रेशर एक वो सर पीयर प्रेशर तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि बच्चे लोग क्या बोलेंगे, स्कूल फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। और जो बच्चे को था कि मैं फेल होके कुछ पैसा कमाऊंगा, तो शायद उसके मन में ना अभी सिर्फ प्रोफेसर वाले बच्चे के थॉट्स बताइए आप तो मेरे को। अभी आप वो अच्छा, बच्ची तो हैं सर जो प्रोफेसर, तो आपके मन में है कि मम्मी क्या बोलेंगी, लोग क्या बोलेंगे, सोशल दोस्त क्या हाँ बोलेंगे, पीयर डॉक्टर वालों प्रेशर और साइड सोशल मन में आएगा यार ये कोई जिंदगी है, साली सुसाइड कर लेना चाहिए, ये कोई जिंदगी है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऑलराइट, यस सर, यस सर, प्रेमलता जी, अंकिता जी, अभी इससे किसी ने उसे कुछ कहा है? नहीं। ये चीजें कहाँ घट रही हैं सारी की सारी? उसके अपने दिमाग में। यस सर, उसके मन में। हाँ जी, अब सारे के सारे 120 पीपल बन जाइए शोरूम वाले का लड़का। आप अभी फेल हो गए हैं और आप बड़े खुश हैं, तो अब दिमाग में आपके क्या चल रहा है? Sir, actually he want to get fail and he आप achieve सिर्फ what थॉट he बताइए, want. वांट टू मत बताइए। आई वांट यू टू टेल मी द थॉट कि क्या मन में थॉट है। यू आर दैट सन, व्हाट इज हैपनिंग? बिंदास, डॉक्टर बिलाल का बिंदास, मजा आ गया, अभी शोरूम पे बैठूंगा पापा को। Yes, I got what I want, so wish fulfilled, happy. अरे मजा आ गया, अगली बार देखेंगे। अब तो मजा आ गया। पापा को कहा भी था 80,000 रुपए मत खर्चो, कोचिंग पे लो, अब संभालो अपने पैसे। फेल हो गए फोक्स, समझ लीजिए। यू हैव जस्ट आंसर। Please be careful and hang on to every word. Stop all distractions. All events on this earth are neutral. All events on this earth are neutral. आपकी जॉब चली गई, आपकी टांग टूट गई, आपका स्पाउस नहीं रहा, कोई जवान बच्चा नहीं रहा, कुछ भी जीवन में हो रहा है, all events are neutral. What you say to yourself here after the event, that is the cause of your stress. Hello. Agar anytime you are in stress, if you watch your thoughts, you will be seeing that you are talking hugely negative things to yourself, and that is causing all this. Nobody gives you stress. You give yourself the stress. Hello. उस घटना ये अगर कुछ पढ़ी भी हो ना और आप कह रहे कि यार अब तो जिंदगी खत्म, अब तो क्या होगा मेरा, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये तो जिंदगी बेकार और बढ़ गया, ये कोई जिंदगी है तो खत्म करनी चाहिए और बढ़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वाओ स्ट्रेस इज गोइंग अप। I repeat, all events on this earth are neutral. What you talk here after the event, that is the cause of your stress. कौन मर गया, कौन जी गया, टांग छूट गई, कौन चला गया, कौन आ गया, ब्रेकअप हो गया कि मेकअप हो, all the events. And the second point to this is all people don't feel same amount of stress for same event. Hello. Please try to understand. क्या सबको एक ही बात से एक ही जितना स्ट्रेस होता है सेम बात से? Yes or no में जवाब दीजिए। क्या we all feel the same level of stress?
No, sir. No. Thank No. you very much, Different. Sangeeta ji. Yes. We all feel सबका तो different अलग level of अलग ही stress. होगा. हाँ. Naturally. And it will depend upon kind of the self-talk we are doing here, isn't it? समझिए, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. इस बात को ध्यान से सुनिए और आपको मजा आएगा कि सबके लिए अलग अलग डिफरेंट है. यस चंद्रशेखर जी, पटनायक जी, बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर पारुल, थैंक यू. एब्सोल्युटली ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मान लीजिए एक दिन सेशन आप कहीं ऑफिस में बैठे हुए थे, 3 लोग. उपासना जी बैठी हुई थी, पुष्पा जी बैठी हुई थी और अर्चना नायक जी बैठी हुई थी. तो इंस्टीट्यूट के हेड वहां से निकले, उन्होंने तीनों देखा और कहा, तीनों को एक ही बात कही, या अलग अलग इवेंट में तीनों को एक ही बात कही, अलग अलग दिन कही. तो ये कहा कि देखो यार, तुम ढंग से काम नहीं कर रही हो, ऐसे काम चलेगा नहीं, मैं तुम्हें सेट कर दूंगा, ये चलेगा नहीं, तुम समझ लेना. एक घटना घटी तीनों के साथ, तीनों ने एक ही बात सुनी, लेकिन अब तीनों के वहां स्ट्रेस लेवल क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड है कि वो यहाँ क्या बात बोलती है अपने आप से. उपासना जी ने कहा, पता नहीं है साला मेरे पीछे लगा हुआ, इसको क्या दुश्मनी है, क्या खुंदक है, जब देखो कुड़कुड़ाता रहता है साला, नौकरी खा के मानेगा, मेरी नौकरी दुश्वार कर दी. क्योंकि ये ऐसी बातें सोच रही है और जितनी ज्यादा, अब तो यार कुछ और सोचना पड़ेगा, देखते हुए होगा, इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सोचती जा रही है उस बारे में और भयंकर सोचती जा रही है. शाम को 4 बजे कोई इनसे आके पूछा, उपासना जी क्या टाइम हुआ, ट्रेन के नीचे आके मर रहा है, तेरे को क्या टाइम हुआ, दिमाग खराब हो रखा है, मूड खराब हो रखा है और भयंकर स्ट्रेस बना हुआ है. वहीं क्या हुआ, पुष्पा जी का स्ट्रेस कितना है, वो सोच रही है इसको ना 1-2 डाटा देने हैं, रिपोर्ट देनी है, इस चक्कर में ज्यादा कुड़कुड़ा रहा है, लगती हूँ अब करती हूँ, साला है तो मुश्किल काम, बट आज बना के इसके मत्थे मारती हूँ, आराम हुआ. स्ट्रेस पुष्पा जी को भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना उपासना जी को रहा, बिकॉज व्हाट शी इज टॉकिंग इज नॉट एज नेगेटिव एज उपासना जी वाज टॉकिंग. लेकिन अर्चना जी का स्ट्रेस का क्या होगा, उन्होंने क्या कहा, सेम घटना घटी, बोलना यार तुम ढंग से काम नहीं करते, तुम्हें देख लो ये नहीं चला. इन्होंने क्या कहा, पागल है, छोड़ मैं इसका रोज का काम. इनका स्ट्रेस लेवल 0. Can you see it? Hello, can you see it? Do you understand it? हाँ सर, हाँ. Please keep talking. Thank you very much. हाँ सर, हाँ. So next time you are in stress, please watch your thoughts. Think what you are thinking. See the validity of those thoughts. कि भैया ये थॉट कितने वैलिड है या नहीं है, क्या मुझे स्ट्रेस लेने की जरूरत है, पहले ऐसा हुआ है तो क्या घटना घटी गई थी, राइट? यस चंद्रशेखर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. पटनायक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेजिलियंस और टॉलरेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बट वो कहाँ से सीखते हैं, बचपन से सीखते हैं. अभी नॉर्मली ये स्ट्रेस वर्कशॉप जो मैं करता हूँ, स्ट्रेस कॉन्क्लेव, इट इज अ 2 days अफेयर, बट अभी मुझे वो बस बचे हुए 1 आध घंटे में, आधे घंटे जब तक आप सुनना चाहेंगे निपटाना है, और उसके बाद कुछ सवाल जवाब कर लेंगे, बट अभी मेरे को जो आपको बताना है वो सह लीजिए. तो कुल मिलाकर स्ट्रेस इज नथिंग बट, एक इक्वेशन याद कर लीजिए, E plus R is equal to O. E plus R is equal to O. E is event, एक घटना घटी, but R is your response. Your response to that event is equal to the outcome. O is the outcome. So event is not in your control, response is in your control, outcome will change. The moment you change your response, outcome will change. Simple, nothing more, nothing less. When you change the way you look at the things you look at change. Hello. When you change the way you look at the things you look at change. The things you look at change. तो थोड़ा सा एक perceptional change चाहिए. Let me come back to my presentation immediately so that आप लोगों को मैं जहां लेकर जाना चाहता हूँ वो बात आपको पहुंचा दूं, and then we will take some question answer if time is left. So how do you handle the stress? तो बेसिकली मैं आप सबके पास वॉच है, सबके पास यस और नो बोल दीजिए या चैट बॉक्स में. वॉच चाहिए मुझे अगली एक्टिविटी के लिए. आई वांट यू ऑल टू हैव ए वॉच जिसमें सेकंड्स वाली सुई हो, या आपके मोबाइल में आप स्टॉप वॉच तैयार रखिएगा. एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, सो बी रेडी. तो स्ट्रेस कैन बी मैनेज. तो मैं आपको जल्दी से लेकर चलता हूँ मैं अगली पीपीटी पर, जो मैं अगली स्लाइड आपको दिखाना चाह रहा हूँ. वेयर इज इट? थोड़ा ऊपर नीचे भाग रही हैं सब, जस्ट बियर विद मी, मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूँ. पीपीटी इज विजिबल टू एवरीवन? Yes sir. Yes sir. Yes sir. थैंक यू It is वेरी मच. visible. पता है ये बड़ा Yes. गड़बड़ काम है ये, पता है
तो सब लोग वॉच क्या रखें, मैं जैसे ही स्लाइड आएगी अगली मैं कहूंगा गो, तो आपने वो डॉट्स गिनने हैं जो स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ सुई भी देख लेनी है सेकंड्स की, कितने सेकंड पर आपने गिनना शुरू किया और कितने सेकंड में वो डॉट आपने गिन लिए। लेट मी रिपीट, गुरु लोग हैं वैसे तो आप एक बार में समझ गए होंगे। एक स्लाइड आएगी, मैं कहूंगा गो, आपने सेकंड्स की सुई देखनी है कहाँ है, डॉट्स गिनने शुरू कर देने हैं, और ये भी देख लेना है कि जब गिन लिए तो कितने सेकंड में आपने डॉट्स गिन लिए, और फिर वो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर देना है 30 डॉट्स 25 सेकंड्स, 30 डॉट्स 45 सेकंड्स, या 29 डॉट्स 45 सेकंड्स, 41 डॉट्स 60 सेकंड्स, जो भी आपको टाइम। दो चीजें आपने जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करनी है। प्लीज बी रेडी विद योर वॉच एंड बी रेडी एवरीवन। एंड पहले मुझे बताइए, आप एक दो लोग यस बोल दीजिए कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गई हैं आउट ऑफ 120। यस यस सर, यस यस सर। तो वॉचेस आर रेडी, ओके गो। थोड़ी देरी रहेगी, मैं जल्दी से हटाऊंगा। Your time will end now. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कीजिए कितने डॉट्स है और कितने सेकंड आपको लगे इनको गिनने में। ओके, जल्दी जल्दी टाइप। 41 डॉट्स 30 सेकंड्स, 44 डॉट्स 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 40 dots 35 seconds, okay, 40 dots 43 dots 20 seconds, 32 dots 23 seconds, 36 20 seconds, 42 dots 43 dots 20 seconds, okay, 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 आ रहे हैं 41 44 dots 30 dots 20 dots 23 dots 41 dots 22 seconds, 42 dots। डॉक्टर राहुल खड़िया, कितने सेकंड्स आपने सेकंड्स नहीं लिखे? तुषार लोखंडे जी 42 डॉट्स। बाकी भी जल्दी से टाइप कीजिए, कहाँ है बाकी लोगों के जवाब नहीं आ रहा है। आई वांट मोर डॉट आंसर्स। अमृता गोहिल 40 डॉट्स 24 सेकंड्स, कमल बरुआ जी 42 डॉट्स 30 सेकंड्स, लक्ष्य विज 41 20, राहुल खड़िया 20 लेस। ओके ओके ओके, चलिए ऑलराइट। सब बहुत गड़बड़ हो रही है। वी हैव टाइम राइट अप टू 60 सेकंड्स, वी हैव डॉट्स राइट फ्रॉम 23 टू 43 डॉट्स। दोबारा करते हैं, दोबारा स्टॉप वॉच शुरू कीजिए। रेडी, मैं एक दोबारा स्लाइड दिखा रहा हूँ, दोबारा डॉट्स आएंगे, अब की बार आपको गिरने, और अब की बार तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करना। कुछ लोग अब की बार चुके थे, नेक्स्ट स्लाइड में मत चुकेगा। बी रेडी एवरीवन, हियर वी गो, जस्ट काउंट द डॉट्स एंड लेट मी नो कितने सेकंड लगे। एंड टाइप इन चैट बॉक्स। वाह, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। ओके ओके ओके, 50 50 50 50 50 50, 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 50 50 50 50 50 50 50 50 50। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तुषार जी क्या कहना चाह रहे हैं? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जहां ले जाना चाहता था आप पहुंच गए। अब की बार लगभग सभी लोगों ने लिखा है 50 डॉट्स। पिछली बार राइट फ्रॉम 23 टू 48 डॉट्स था, बड़े गड़बड़ थे। पिछली बार सबका टाइम था 20 सेकंड, तो मिनिमम था। सिर्फ एक तुषार का 5 सेकंड, 5 सेकंड में तो 40 तक गिनती नहीं हो पाएगी सर। मुझे ये बताइए कि क्या फर्क है दोनों में, जवाब दीजिए। डू यू रियलाइज कि अब की बार ज्यादातर लोग एग्रीड है कि 50 डॉट्स है और सबको टाइम कम लगा है? व्हाई व्हाई व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस? सर सेकंड स्लाइड जो आपने दिया, हाँ, वो तो सिमेट्रिकल है, तो मैंने तो पूरा काउंट ही नहीं किया। मैंने फर्स्ट वाला काउंट किया, तो मैंने देखा यहाँ पे ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 डॉट्स है, और उधर कॉलम है 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दी, तो फटाक से हो गया। तो सबने यही किया। थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। प्रोफेसर सानिया, But for the first one, sir, I have to calculate how many dots are there. I will give you I-15 whenever it is allowed. It will come from MCU.
दे हैव जस्ट प्रॉमिस्ड मी। तो सृष्टि प्रजापति जी भी कह रही हैं, सब कह रहे हैं कि सर ये जो है सभी ने ऐसा ही किया, और फर्क ये है, निर्मला जी ने कहा दिस इज ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज सिस्टेमेटिक, देयर काइंड सम काइंड ऑफ पैटर्न, देयर इज सम काइंड ऑफ रीजन। मोनिका जी, एम आई राइट? Yes, sir. It has pattern. या तो क्या सीखा आपने? अगर आप ध्यान से देखें, पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहली बार गिनने में आप अपने नंबर के बारे में सर्टेन नहीं थे, एम आई राइट? कुछ ने तो दोबारा भी गिन लिया, ये डॉट तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, फिर टाइम कम था, प्रेशर था, आपने लिख दिया। दूसरी बार सबने कहा 50, और मैं कहूं भी नहीं 50 नहीं, आप कहोगे सर आप गिन लो, आप आंखों के अंधे हो, आपको दिखता नहीं है 50 ही है। पहली बार आप अपने काम के आंसर के रिजल्ट के प्रति सर्टेन नहीं थे। दूसरा, आप अपने रिजल्ट के प्रति सेटिस्फाइड नहीं थे पिछली बार की, जो मैंने कहा है ठीक है। तीसरा, आपको ज्यादा टाइम लगा क्योंकि मिसमैनेज था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। और चौथा, डू यू ऑल ऑफ यू रियलाइज, पिछली बार, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डॉट, लास्ट टाइम द डॉट्स वर 39 एंड ऑल ऑफ यू टुक एटलीस्ट 20 seconds टू काउंट इट। अब की बार डॉट्स ज्यादा थे और टाइम कम लगा। योर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली if you have understood where I am taking, what are the lessons. पिछली बार काम करते हुए स्ट्रेस था, ये छूट तो नहीं गया, वो छूट तो नहीं गया, क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, क्या करने की जरूरत है। Folks, if you have a system of doing a job, if you have a system of prioritizing the works that you want to do, you will be able to do much better. You need to plan, you need to systemize your things, and the system means nothing. Prioritize the things that you are going to do in a day. Your life will be much less, I mean you will live with much less stress, and it's so simple. और उसमें थोड़ा प्रोविजन रखिए, emergencies are part of life. कोई हो सकता है, कोई खबर आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, सडनली आपको वो शेड्यूल चेंज करना पड़े। बहुत रिजिड ना हो, लेकिन एक सिस्टम जरूर हो, और उससे आगे आप बढ़ पाए, तो यू विल बी एबल टू। सो आई जस्ट टोल्ड यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो 2 लेसन हो गए, एक्सरसाइज करते रहिए, दूसरा अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कीजिए, अपनी सेल्फ टॉक को चेक कीजिए। नेक्स्ट टाइम यू आर इन स्ट्रेस, प्लीज चेक योर सेल्फ टॉक। Third, I have just given you, please make a system, prioritize your day, try to prioritize your life, see, it's not work-life balance. Corona has taught us all that it is life-work balance. Work is not important, life is important. This has come, I mean, this has been proven in last 2 years. So मैंने सारी questions बदल दिया. Wherever I go about work-life balance, I say it's not work-life balance, it's life-work balance. Life comes first. For life you work, not for work you have life. Hello. For life you work, but your work, your life is not for your work. So life comes first. So life work-life balance से you have to shift to life-work balance. Situations वो नहीं है, लेकिन हम अपने responses control कर सकते हैं. This I have already shared with you. Please control your responses. Equation is already clear to you, so I will not waste much time here. So stress is self-induced. ये मैंने आपको भी example से समझा दिया. एक ही same event can cause different stress to you. So either to change the things or you change yourself. There are only 2 alternatives that you have, and please learn to have patience with yourself and others. This is key to a growing human being. Learn to have patience. Patience is the key. So learn to have patience. प्रशांत जी मुझे बता दीजिएगा जब ये लोग लगे आपको कि अब थक गए हैं, बहुत हो गया है, क्योंकि सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुन रहा। ये 120 लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं, इनको बड़ा प्रणाम है, महान लोग हैं ये आज के जमाने में इतना सुनने वाले। सर है अभी समय, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको रोकना हो ना तो आप एक बार ऐसे से कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि टाइम हो गया। जी सर, जी सर। तो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ चलिए, कैसे जाना वो मैं सिखाऊंगा आपको, इतना आसान नहीं है। देखिए, जब भी आप आज का स्ट्रेस लेते हैं ना, तो अगर आप भविष्य की चिंता करके आज का स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो सारी चिंताएं याद आ रही हैं और ये सारी साइकिल गिरा देता है। कभी आपने पहले किसी जमाने में बहुत साइकिलें होती थी साइकिल स्टैंड पर, एक साइकिल को धक्का तो सारी गिर जाती थी। आज भी हम यही करते हैं, कोई भविष्य की चिंता करके आज की सारी साइकिलें गिराते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। वो 10 साल बाद की स्ट्रेस 9, 8, 7 सारी साइकिलें गिरा देते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। प्लीज बी केयरफुल। सो एक और टिप देता हूँ आपको मैं, एंड दिस इज सिंपल एंड इजी। अगली बार आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो क्या बोलेंगे अपने आप से? वॉच योर सेल्फ टॉक।
पहली बात तो तय होगी कि स्ट्रेस आ रहा है सेल्फ टॉक से। तो अब अगला सवाल अपने आप से पूछिए कि यही सिचुएशन लेकर मेरी छोटी सिस्टर या मेरा बेटा या बेटी मेरे पास आए तो मैं उसे क्या बोलूं? Get yourself from being involved to a third person. Watch that situation from a third perspective and tell yourself से बच्चे को क्या बोलते हैं अब स्ट्रेस में, बेटा ये चला जाएगा, ये आज है टेंशन, 2 साल बाद तेरे को टेंशन नहीं रहेगी, तू ऐसी आज टेंशन कर रहा है कि दोस्ती टूट गई है या एग्जाम में नंबर कम आ गया, लाइफ में बहुत मैटर नहीं करते, अगले साल आ जाएगा। अपने मैटर में हम गड़बड़ा जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम यू आर इन डीप स्ट्रेस, सेल्फ टॉक अपनी वॉच कीजिएगा, अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिएगा और अपने आप से वो कहिएगा जो उन हालातों में आप अपनी बिटिया को, छोटी बहन को, स्पाउस को, दोस्त को, छोटे भाई को, किसी को समझाते हैं। आप दुनिया में किसी को भी उल्टी सीधी सजेशन दे सकते हैं, बच्चे को नहीं दे सकते अपने। तो अगली बार अपने आप से वही कहना है कि इस हालात में मैं अपने बेटे या बिटिया से क्या कहती। टेल योरसेल्फ दैट एंड दिस इज इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम यू कैन गेट प्ले इट इन योर माइंड कि यही सिचुएशन लेके बेटे आ गया, नौकरी जाने वाली है, मम्मी समझ नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, बॉस ये मांग रहा है, डाटा हो नहीं रहा है, ट्रांसफर की बात हो रही है, क्या करना चाहिए? व्हाट विल यू टेल हिम और हर? टेल टू योरसेल्फ। सो बिकम ए ऑब्जर्वर समटाइम, दैट हेल्प्स। कैरी मत कीजिए सब स्ट्रेस को। कभी कभी बहुत भारी घटरी लेके अपन चलते रहते हैं, कमर झुक जाती है, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस झेलते हैं, एक दिन फेंक देते हैं, बहुत लाइट महसूस करते हैं। कैरी मत कीजिए, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करना दिक्कत है। मैं रेजिलियंस पे एक बात लिखी थी, उसके ऊपर बाद में बात बताऊंगा, बट अभी कहता हूँ एवरी क्राइसिस आस्क मी and I promise you nobody can say it better than me with authority. Every crisis is an opportunity. Forget China. Every crisis is an opportunity. Every problem is an opportunity. आपको एक 2 वाक्य देके जाता हूँ, आपकी जिंदगी का सारा स्ट्रेस खत्म कर दूं, जो लोग खत्म करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दे, अभी लो 1 मिनट के अंदर सारा स्ट्रेस खत्म इमीडिएटली। जब आप घर जाओगे घर वाले कहेंगे कि यार ये गई तो ठीक ठाक थी, आए कैसे है ये लोग। और सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स के हाथ दिखे हैं मुझे अभी तक, लक्ष्य जी, अर्चना जी, सब लोगों के हाथ दिख जाए तो मैं आपको वो जादू वाली टिप दे दूं जिसने, थैंक यू वेरी मच, जिसने मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की लाइफ बदलती है। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन टेक्निक सिखाने वाला हूं एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। लिसन केयरफुली। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाई है, फैमिली को भी सिखाई है। हाथ जरा आते रहे और लोग मुझे दिखते रहे तो मेरे को मजा आएगा, समझिए। Think of a problem. मेरे साथ इस एक्टिविटी में जुड़े रहिए। Think of a problem that has been bothering you, causing you stress. Think of something which has been causing you stress. मन में ही सोचिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और उसके एंड में वो प्रॉब्लम सोच लीजिए, जो भी हो रहा है, बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही है, स्पाउस से नहीं बन रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, बॉस बहुत तंग कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल बॉस है, जो भी स्थिति है, वो पैसे की दिक्कत है, मकान, जो भी है। आदमी नॉर्मली 3-4 चीजें होती है, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड और रिलेशनशिप। ये 4 चीजें सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी है, आई प्रे आपको ना हो, बट अगर कोई है, उस प्रॉब्लम को सोच लीजिए और मन ही मन अपने आप से कहिए, दिस इज द प्रॉब्लम। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टॉप। सो अभी आपने एक इवेंट सोची, एक चीज सोची जो जीवन में आपके है और आपने कहा दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ लर्न द फर्स्ट वर्ड, लर्न द फर्स्ट वर्ड विच इज सब्स्टिट्यूट। मैं अपने सारे क्लाइंट से कहता हूँ और क्लाइंट्स की लाइफ बदल गई। थिंक ऑफ द सेम प्रॉब्लम and at the end of it, think of the same thing that is happening in your life, the causing the stress. Now remove word problem and say to yourself, this is the situation. Hello. Think of the same thing that has been bothering you and you said, this is the problem. Now say, this is the situation. Problem is an active word. Problem needs solution. Problem needs effort. Problem causes tension. Situation is neutral. Situation is neutral. Problem is negative. बच्चा पास नहीं हो रहा है, this is a situation. बात नहीं मार रहा, this is a situation. This is not a problem. जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, this is a situation, not a problem. मेरी फैक्ट्री में क्या तो लोग एब्सेंट हो गए, this is a situation, not a problem. Problem what is banned in my factory and my family.
आज dispatch नहीं हुआ, this is not a problem, this is a situation. Situation needs handling, problem needs solving. You all are good at handling all situations. Problem solving आपको सिखाना पड़ेगा. But please try to remove the word problem and put a word situation. Situation is neutral word and it needs handling. But ask me, a businessman, a successful businessman, मैंने जिंदगी भर यही किया है. I give you a better word, I give you a better thing. बल्कि दो वर्ड देता हूँ. Think of the same problem and now say yourself, remove word problem, remove situation. Say this is a challenge. Hello. Say to yourself, this is a challenge. प्रमोशन नहीं मिल रही है, लेके मारना है. दिस इज ए चैलेंज. बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, लेके मारना है. एडमिशन मिली वाला कॉलेज में, लेके करना है. ये बात तीसरे चढ़ दिया, चैलेंज. रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा, इसको सेट करना है यार. When you see a situation as a challenge, different kind of thoughts, different kind of juices flow inside you, and they make you want to overcome challenges. Human nature. Any challenge we want to overcome. कोई challenge करते हैं, कहते हैं अब भी करके दिखाते हैं boss. Challenge gives the best in us. The challenge. बच्चे के एग्जाम नहीं हो रहे हैं. मेरे पास एक मैडम आई, कहती सर सेशन सुन रही थी, कहती सडनली सर यू हैव चेंज. मेरा बच्चा अचानक स्कूल जाना बंद हो गया था, बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी 2-3 महीने से बंद हो गया. मैं सोच रही थी ये प्रॉब्लम है. आज सुबह भी हस्बैंड से बात होती, प्रॉब्लम है, लेकिन राइट नाउ आई एम सीइंग इट एज ए चैलेंज. मैं जाती हूँ और देखती हूँ क्या हो सकता है. हेलो, थैंक यू सर, आपने मुझे प्रॉब्लम से चैलेंज बता दिया. हेलो, दिस इज ए प्रॉब्लम और मैं देखती हूँ अब कैसे क्या करने जरूरत है. विल डू व्हाटएवर रिक्वायर्ड. वी वांट टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस. But finally, let me give you something that is close to my heart, that is close to what is written on your screen, that is close to any businessman. See, think of the same situation that you are thinking. Remove word problem, remove word challenge, and say to yourself, this is an opportunity. Hello. Bigger the problem, bigger the opportunity. ये जो कंप्यूटर है, ये जो कैमरा है, ये जो स्क्रीन है, ये जो कपड़े आपने पहने हुए, चप्पल, ये घड़ी, ये चश्मा, anything that you are wearing or using, they all were problems sometime and they are the opportunity someone seen them. ठंड लगती थी तो किसी ने स्वेटर की अपॉर्चुनिटी देखी, आंखों में दिखते थे, किसी ने चश्मे की अपॉर्चुनिटी देखी. बिगर द प्रॉब्लम, बिगर द अपॉर्चुनिटी, बिगर द बिजनेस. हेलो. ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर challenges. नहीं है, either are challenges or are opportunity, nothing more, nothing less. There are no crises, there are only opportunities in life or challenges. Whatever is happening in your life. और ये मैं सोचिए, मैं लफाजी कर रहा हूँ. I am a man who has defeated epilepsy, a man who has defeated cancer, stomach cancer. I am telling you that. I am telling you that. There are no problems in life. There are only challenges. There are only opportunities. How you perceive them, please be careful to that, and you can do much better. And this is what I'm thinking all the time, years, that people can do it, and I am sure you people are extraordinary. You can छोटी-छोटी बातों को जान दीजिए. मैं आप बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है. एक आखिरी टिप लेके जाइए. मुस्कुराइए, हंसिए, बिला वजह मुस्कुराइए. देखिए साहब, हंसना बड़ी जबरदस्त चीज है, और क्यों है ये समझिए. अब जो मुस्कुराए, मैंने सेशन की शुरुआत कहाँ से की? आपका लटका हुआ चेहरा. मैंने कहा आप सब जो मुझे सुने, प्लीज अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट लाइए. क्योंकि करते क्या है, जब हम मुस्कुराते हैं, हमारा दिमाग लड़ रहा होता है पूरी सिचुएशन से, एड्रेनलिन क्रिएट करता है, कॉर्टिसोल जल्दी जल्दी इधर उधर भेज रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है. जब आप मुस्कुराते हैं तो उसको लगता है यार ये मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, मैं जबरदस्ती इतने सारे केमिकल रिलीज कर रहा हूँ. आपको पता नहीं आप कितना बड़ा भला करते हैं. ये ऐसे नहीं चल रहे लाफ्टर क्लब. तो कई पार्टिसिपेंट कहते हैं सर मुस्कुराना, मन तो कर रहा है कि सामने वाले को पकड़ के मुक्के मुक्के मारूं, आप कह रहे हो मुस्कुराओ. मैंने कहा हाँ यार, नकली मुस्कुराओ. दिमाग को बेवकूफ बनाओगे, अपना बड़ा भला होगा. अच्छे माहौल में तो सब मुस्कुरा लेते हैं, जरा तकलीफ में मुस्कुराओ यार. तो क्या कैसे मुस्कुराए? मैंने नकली मुस्कुराओ. बाहर निकलो, बालकनी में जाओ, अंगड़ाई तोड़ो और रस्सी से अंगड़ाई तोड़ के नकली मुस्कुराओ. कि बालकनी में जाके क्यों? मैंने कभी बालकनी में जाके मुस्कुराएगा, क्या पता कोई पड़ोसन वड़ोसन देख ले, तेरा भला हो जाए. तो मतलब यू नेवर नो हाउ लाइफ शेप अस. टेक चांसेस, गो आउट, स्माइल, कीप बी चीयरफुल. सो मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए. और उन लोगों को ज्यादा मुस्कुराहट दीजिए जिनके पास स्टॉक कम है. वो थोड़ा कम मुस्कुरा रहे, अपने स्टॉक में से थोड़ी उनको दे दीजिए. मुस्कुराहटें बांटते चलिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पीपीटी. बट नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग एल्स. जो टीचर्स की बात हो रही है, जो एक अच्छे एजुकेशन की बात हो रही है.
क्या हम सवाल जवाब ले लें, क्योंकि अब थोड़ा समय बचा है? क्या राय है जी सर, डॉक्टर? बिल्कुल। या बिल्कुल सर। अभी और सेशन झेलना चाहेंगे? बस हो गया काम? सर आई थिंक हम क्वेश्चन आंसर ले लें सर, उसमें भी डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, बेहतरीन, जल्दी से दाग दीजिए, फटाफट दागिए अपने आप को। थैंक यू डॉक्टर बालू। जरा सवाल those who दाग want to दीजिए। ask they can unmute themselves and they can ask the question. थैंक यू पीयूषा जी, थैंक यू पीयूषा पटेल जी, थैंक यू वेरी मच। वो एजुकेशन वाली बात रह गई है, बट वो अब दूसरी पीपीटी, लेकिन समय कम है, तो चलिए जो हो गया, मुझे लगता है समथिंग हैज रीडेवलप्ड। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन, लव एंड staying here, bearing with me, your time, your attention, and the smile that you are giving. Thank you very much. I am so grateful for it. तो अंकिता जी, पीयूषा जी, कोई सवाल? डॉक्टर तुषार लोखंडे, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? सो बहुत अच्छी बात है आप Sir, सवाल। I had one question, sir. प्लीज गो अहेड। Sir, whenever we listen to such sessions, we are very much motivated, full of True. energy, life. But after some time, again, the same thing is there. So how to maintain it so that continuously motivation should be there? थैंक यू। तो डॉक्टर कंचन के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन, एंड देन लेट मी आंसर इट। ये फैक्ट है। थैंक यू। अभी सेशन सुन के बड़ा जोश आएगा कि सब बदल दूंगी और फलाना और ढिमकाना और ये और वो। ग्रीनिंग, थैंक यू पीशो जी। तो लेकिन 2 दिन रहता है, कल से ये करूंगी, 2 दिन रहता है। तो मैं आपको 2-3 टिप्स देके जाता हूँ। पहले तो समझ लीजिए क्या करने की जरूरत है। 2-3 चीजें आप याद रखिए। पहला, रात को सोच के सोए थे कि कल से घूमने जाओ, नहीं गए। किसी को पता है? नहीं। किसी ने कुछ कहा? नहीं। लेकिन एक को पता है, खुद को। तो अपनी नजर में थोड़े से छोटे होते हैं। चंद्रभान जी, स्ट्रेस और रिलेशनशिप पे मेरा जो सेशन है वो भोपाल में क्या सेंट्रल इंडिया का सबसे डिमांडेड सेशन है। मैंने लोगों का, मेरा काम ही यही है कि रिश्तों से स्ट्रेस हटाना। स्ट्रेस और रिलेशनशिप आर इंटररिलेटेड, बट लेट मी आंसर डॉक्टर कंचन्स क्वेश्चन। तो शी इज ए होस्ट, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बट सुनिए अभी 3 काम कीजिए अगर आपको बदलना है। तो पहला, हैव ए पार्टनर इन क्राइम। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसको समझिए। किसी को कहिए, किसी को साथ जोड़ लीजिए कि देखो साहब, मैंने कल से ये तय किया है, मैं ये करने वाला या करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा साहब मेरे को कल से घूमने जाना है, और कोई ऐसा दोस्त पकड़ लीजिए कि आपको 6 बजे जाना है, वो 5:45 बजे वाला हो, तो उसे वो क्या करेगा, वो सुबह आके खड़ा होगा, आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गई, चलिए डॉक्टर कंचन। अब ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है रिजॉल्व, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई एक ऐसा है जो दरवाजे पे आके खड़ा है। अब आप लाख गाली दोगे कि यार तुम बड़े पक्के हो, यार तुम आके खड़े हो जाते हो, बट योर रिजॉल्व विल बिकम बेटर। तो मेरी पहली टिप ये है, प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ आपको। किसी एक को कहिए कि मैंने कल से ये वायदा किया अपने आप से कि मैं ये करूंगी या नहीं करूंगी, एंड एनी टाइम दैट हैपेंस आई विल टेल यू, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट आई डोंट मेस अप। 1, तो सुबह घूमने जाना है, और अगर 6:30 बजे घूमने जाने का तय कर लिया, तो कोई ऐसा देख लीजिए जो 6:15 बजे आके घंटी बजा दे। अब बड़ी मुसीबत हो जाएगी, वो बाहर खड़ा है, अब आपको उठ के झक मार के उठना पड़ेगा। कैन यू सी इट हैपनिंग? पहला। दूसरा, बहुत बड़े चेंज मत कीजिए। बड़े, वो गड़बड़ क्या होती है, फ्रस्ट्रेट करते हो। जो बच्चे सुबह 9 बजे उठते हैं, एक दिन आके जोश में आते हैं सेशन में, कल से सब 6 बजे उठूंगा। मैंने कहा तेरे बस की नहीं है बेटा, पॉसिबल। इतना बड़ा चेंज तो करना ये है कि भैया 1 हफ्ता तू ना 8:30 तक उठ। इतना सा चेंज करना बड़ा आसान है। फिर धीरे से 1 हफ्ते बाद तू 8 कर लेना, फिर 1 हफ्ते बाद 7 कर लेना, फिर 1 महीने के अंदर अंदर तू वापस 6 बजे उठना शुरू हो जाएगा। बट तू ये कहेगा मैं कल से 6 बजे उठूंगा, होना नहीं है। इट कैन फ्रस्ट्रेट, इट कैन फ्रस्ट्रेट। दूसरा और तीसरा और फाइनल टिप, आप सब अध्यापक हैं, टीचर हैं, गुरुजन हैं। कोई काम करते हैं तो रिवार्ड देते हैं, कोई नहीं करते पनिशमेंट देते हैं। बच्चों को भी देते हैं, घर में बेटा बेटी को भी, स्टूडेंट्स को भी। अपने आप साथ क्या करते हैं, आप ये तो तय कर लेते हैं कि कल से ये करूंगा या कल से ये करूंगी। अगली बार जब ये तय करें, साथ साथ ये भी तय कर लेना कि ये नहीं करूंगी तो क्या, व्हाट विल बी माय पनिशमेंट। वंस यू डू दैट, और फिर आप दोनों ही वायदे तोड़ देंगे अपने आप से, तो उसका कोई चारा मेरे पास नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ। बट अगर आप अपने आप से वायदा कर दें कि कल से मैं घूमने जाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो नॉन वेज नहीं खाऊंगी, या शाम को व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, या फेवरेट प्रोग्राम नहीं देखूंगी, जो भी आप
decide some punishment for you. So these 3 tips will help you. First, have someone to really take care and help you in that resolve. 2, incremental changes लाइए, आमूल चूल परिवर्तन हो नहीं पाता है. और तीसरा, whenever you decide by tomorrow I will start doing this, in next 10 seconds also decide नहीं करूंगी तो क्या, what will be my punishment. These things will help you. I hope I could answer to you some Yes, extent, sir. Dr. Thank you Kanchan very much. Bhatia. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Any other questions? Yes, sir, from my Please. side. Yes, please. Yes, actually, normally I do meditation, I do exercise, so most of the time I manage my life very well. But since few days, maybe this is post-COVID effect, I feel anxiety suddenly. Means sometime when situation arise, maybe it long only for few minutes, 10 or 15 minutes. But that time I try to control things. And yesterday only I realized कि मैं थोड़ा anxious या थोड़ा panic reaction हो जाता है. It lasts only for 10 minutes, but that 10 minutes enough to means damage things. Like, Okay. so panic and anxiety, how we manage it. Okay. Thank you very much, Priya ji. Coming forth and talking these things, not many people do that. But I am happy that you are doing a great job by doing some meditation and exercise. But anxiety और panic में सिर्फ 2 बातों पर ध्यान दीजिए. We are just thinking the worst possible outcome. We are so focused on worst possible outcome that is causing all the anxiety and panic in us. So one is you need to validate कि यार ये जो मैं सोच रही हूँ पहले कभी हुआ है, तो 10 में से 9 दफा आपको समझ आएगा हुआ नहीं है, अपने जबरदस्ती टेंशन पा ली है. दूसरा, एंजाइटी के पे बड़ा, आप तो मेडिटेशन करती है, इट रियली हेल्प्स. अगर बेसिक टिप में 10 मिनट वाली एंजाइटी है, एक काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए. नाउ व्हाट इज स्टॉप लॉस? जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते हैं कि स्टॉप लॉस टेक्निक होती है. उसमें बिजनेस में कहते हैं कि साहब यहाँ तक तो मैं लॉस सहूंगी, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम इस माल को बेच न देना स्टॉक को. लेकिन आपका दिमाग स्टॉप लॉस नहीं जानता. मैं प्रिया जी को कहूँ कि प्रिया जी आपने ना बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, सोचना ही नहीं इस बारे में. आप कहोगे सर फालतू बात करते हो, तो मेरे को भी पता है, पर सोच अगर मेरे कंट्रोल में होती, रुकती थोड़ी, आप तो कुछ भी ऐसे फेंक. करना क्या प्रिया? In that 10 minutes, whichever situation you are, please use your body to some extent. कैसे, कमरे में बैठी है तो टहलना शुरू कर दीजिए, टहल रही हैं तो दौड़ना शुरू कर दीजिए, या ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग शुरू कर दीजिए, लेटे हुए हैं तो बैठ जाइए, बैठ रहे हैं तो वॉक कीजिए. Please use your body to put a stop loss to your anxiety and panic attacks. तो worst possible outcome सोचना बंद कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ टॉक कीजिए. और दूसरा, use your body. उस कमरे से निकल जाइए जिसमें बैठ के सोचे. होता ही है पैनिक और एंजाइटी में, हम पैरालाइज होकर वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं. इमीडिएटली ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, स्टार्ट वॉकिंग. दिस विल हेल्प यू. ट्राई दिस नेक्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंस. चेंज योर पोजीशन, फिजिकल पोजीशन. यूज योर बॉडी टू पुट ए स्टॉप लॉस ऑन दैट 10 minutes. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. प्रिया, मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए. अवर बॉडी नो स्टॉप लॉस, अवर माइंड डजंट. दिमाग तो ना सोचता जाएगा, रात को भी सोचेगा, दिन में भी सोचेगा, लेकिन बॉडी क्या करती है, कभी कभी आप शाम को थकी होती है, घर जाके कहते हैं यार आज मेरे से अब नहीं होगा, आधा घंटा मुझे आराम करे तो फिर मैं करती हूँ, या 10 मिनट गए यार अब मेरे बस की नहीं है. योर बॉडी नो स्टॉप लॉस, योर माइंड डजंट नो. तो वी विल यूज अवर बॉडी फॉर पुटिंग ए स्टॉप लॉस टेक्निक ऑन अवर माइंड. सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. So one more question linked to that, our body knows everything. What I realize that sometime it happen कि problem बहुत बड़ा होता है, but हमें इतना डर नहीं लगता है अंदर से. हम खुद फील करते हैं कि यार नॉर्मली तो हम इस सिचुएशन में डरते हैं, बट आज उतना डर नहीं रहे, और एंड ऑफ द डे सच में वो नॉर्मल ही रहता है. और किसी दिन कोई नॉर्मल सिचुएशन में या सिचुएशन नहीं होती है और एक इंट्यूटिवली हमें टेंशन होता है, अंदर से बॉडी में कुछ अजीब सा लगता है, एंड एंड ऑफ द डे उस दिन कुछ गड़बड़ होता है. सो इज इट रियल दैट आवर बॉडी knows subconsciously things and it try to guide us? Is it possible? No. Your subconscious is guiding your body, and your subconscious knows. Subconscious को if you study, I'm a clinical psychologist, so I can tell you. जो unknown origin की anxiety होती है ना, वो it is some thought. तो मैं जब एक्सरसाइज करवाता हूँ इन क्लिनिकल सेटिंग, तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स, जैसे अभी कल पर मैंने केस हैंडल किया, तो वो शी वाज वेरी वरीड, शी गेव हर डॉग वाज वेरी सिक, शी वाज अ डॉग लवर, तो इवेंचुअली ही वाज गिवन इंजेक्शन एंड शी वाज टेरिबली एंग्शियस कि पता नहीं क्यों, क्या है, काम तो ठीक किया क्यों है.
बट बातों बातों में निकला सर मैंने दे दिया, मैं डॉग लवर थी, मैंने दे दिया अभी, तो मैंने ठीक है ना, आई मीन यू रिलीव्ड हिम ऑफ द पेन एंड यू लव्ड हिम एंड यू आर स्टिल वरीड अबाउट हिज डेथ. बट इन फ्यू मिनट्स आई कुड रियलाइज टॉकिंग टू हियर कि अभी सब मोहल्ले में भी सब लोग कह रहे थे ये वो है. शी वाज वरीड अबाउट कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल बी द पीपल रिएक्शन टू दिस, बट शी वाज नेवर एबल टू डेसिफर दैट. और वो कह रही थी सर अननोन एंजाइटी हो रही है. देयर इज नॉट अ अननोन एंजाइटी. अननोन ओरिजिन ये है, you need to sit and calmly see where I am getting to. One thought to second to third and eventually you reach to the thought which is passing away. Thoughts cause anxiety. मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया. It is your self talk about an incident that is causing anxiety, nothing more, nothing less. Your body doesn't know much about it. Your subconscious. तो वो वहाँ stored जितनी memories है वो they come rushing forward and they make your body do something. So thank you very much. Thank you very much for making the session so interactive. प्रमोद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? Jeanat has asked the question. Let me see what it is. Sometimes for small issue feel worried and we will be troubled, sleepless nights. So how to get rid of that? I already told you. Please check your thought process. Do some exercise. Don't sleep in the bed till you are really willing to tire. सब कुछ लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं, नींद नहीं आती जाके बिस्तर में लेट जाते हैं. प्लीज मत कीजिए, तब तक मत घुसिए बिस्तर में जब तक नींद के झोंके ना आने लगे. और अगर रात को नींद नहीं आ रही है बिस्तर में 11 बजे उठ के कुछ पढ़िए, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कीजिए. पढ़े रहेंगे, नींद आ नहीं रही है, क्योंकि 11 बजे 10 बजे लाइट बंद करनी है, ये ओवर थिंकिंग में लग जाएंगे. ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द एंजाइटी इन एटलीस्ट इंडियन सेटिंग. सोचते ही रहते हैं और नींद नहीं आती तो और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं तो नींद और गायब हो जाती है, फिर और सोचते हैं और सुबह तक बैंड बज जाता है. थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिस्तर में तब घुसिए जब नींद आ रही है. कभी कभी रात को बड़े एंजाइटियस में हम सोते हैं, मन में बड़े परेशान होते हैं, दिमाग का सारा फर्नीचर अपसेट होता है. जब सुबह उठते हैं तो पता नहीं कौन रात को आके सेट कर जाता है. सुबह हम लोग ठीक ठाक उठ जाते हैं तो दिमाग में फर्नीचर सेट हो जाता है. लर्न टू स्लीप टाइट. थोड़ी एक्टिव सीखिए, मेडिटेशन सीखिए. जीना जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, अभी टाइम नहीं है, किसी दिन दोबारा कंचन जी बुलाएंगे तो आप सबको सिखा के जाऊंगा कि जिंदगी के और कौन से वो ढंग हैं जिनसे आप इन सब छोटी छोटी समस्याएं जरा जरा सी टिक से आप पार पा सकते हैं. सो अंकिता जी हैज इज दैट. यस सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घर पे अगर सपोज मम्मी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दिमाग में रहता है अरे ये तो मम्मी है, मम्मी समझ जाएगी. लेकिन उससे भी छोटी कोई प्रॉब्लम अगर हम मतलब अपने वर्क लाइफ में हो या फिर जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहां पे है, तो वो बहुत ज्यादा ओवर टेंशन हो जाता है कि इसका क्या होगा, कैसे होगा. मे बी वो बहुत ही छोटा सा ही प्रॉब्लम है या फिर कुछ है ही नहीं, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं. लेकिन इससे ज्यादा प्रॉब्लम घर में है तो वी नो हाउ टू हैंडल इट, बट इन आवर वर्क लाइफ आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट. मुझे लगता है कि क्या होगा, कैसे करें. तो हाउ टू कंट्रोल माय थॉट्स इन माय वर्क लाइफ, हाउ टू बैलेंस इट. ओके, सो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या है या किसी से प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की है. घर की प्रॉब्लम में आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं और ऑफिस की प्रॉब्लम में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. हाँ, सो व्हाट यू नीड टू डू इज request Dr. Kanchan Bhatia to create a session for overthinking, controlling the overthinking. Next time we will do, but मैंने overthinking के लिए भी आपको बताया, use your body for overthinking. ऑफिस में बैठ के ना ऐसे सोचते नहीं रहना. अगर ऐसे बैठ के सोचते रहेंगे ना तो दिमाग घूमता रहेगा. उठ के किसी कुलीग के कमरे में चले जाओ, बातचीत करो, ओवरथिंकिंग रुक जाएगी. बच्चों को बुला के कुछ शुरू कीजिए. जिस ओवरथिंकिंग की पता क्या दिक्कत क्या है, हम सॉर्ट ऑफ पैरालाइज हो जाते हैं एक ही सिचुएशन में, एक ही रूम में, एक ही चेयर में, एक ही हालात में. Move. Use your body for stopping overthinking. अभी इतना ही है, but ये complete session है. In fact, stress management for teachers is a huge session. There are few things. Few things you need to avoid. Few things you need to accept. Few things you need to alter. So acceptance is the key. अगर आप accept करना सीख जाएंगे तो मैं आपको 5 मिनट टिप दे सकता हूँ, बट प्रशांत जी कैमरे पे आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जाने का समय हो गया. No, sir, you can continue. Accept. मैं एक टिप दे जाऊंगा कंचन जी जाते जाते सबको काम की. Sure, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं. Okay, this is prompted by Ankita ji, so a round of applause for Ankita ji, and this will partly answer the question of Piyusha ji also. So here I go. मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, और ये ना एग्जांपल मेरा कई बाबू ने भी कॉपी कर लिया, एक बड़े बाबा ने भी सुना दिया.
तो मेरे लिए एक बार काउंसलिंग के लिए एक यंग कपल आया और मेरे पास आया और बैठ गए सामने, ये हस्बैंड बैठ गया, ये वाइफ बैठ गई। तो मैंने बोलिए, अच्छा काउंसलिंग में ना लोग कई बार बोलते नहीं, दहाड़े मार के रोते हैं। मैंने भैया रोने से नहीं समझ आएगा, तुम बोलोगे तब तो मैं कोई हेल्प कर पाऊंगा। तो मैंने बोलिए, कहता सर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा तभी गाड़ी वर्कशॉप में आई, यानी मेरे पास कौन आता है यंग मैरिड कपल साले, तुम हाँ घूमते बड़ी लेक पे मेरे पास आए हो तो कोई प्रॉब्लम है, चुप रहना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर ये जो मेरी वाइफ है ना, मैंने कहा जी सर ये सिस्टमेटिक नहीं है। मैंने कहा सुन यार, बीवी में क्या सिस्टम ढूंढ रहा है? ISO 9000 वाइफ भी होती है कोई? वाइफ इज अ वाइफ, उसमें क्या सिस्टम ढूंढ रहा है यार? कहता अग्रवाल सर आप समझे नहीं। मैंने कहा क्या नहीं समझा? कि सर शादी को 5 साल हो गए, ये अभी तक सिस्टमेटिक नहीं हुई। मैंने कहा यार इसका टाइम पीरियड से क्या लेना देना है? जब शादी हुई तो ये बात हुई थी कि तू 2 महीने तक 2 साल तक प्रोबेशन पे रहेगी, और उसने कहा था तू 3 साल तक सिर्फ फादर हस्बैंड रहेगा, फादर नहीं बनने दो। आई मीन क्रेजी। People are people, relationship are imperfect, relationships are meant to be imperfect. Please understand that. Even your mother, father are in fact, हमारी नजर में हमारे मम्मी पापा, मम्मी is perfect, but ask your dad, he will tell you the real story. So relationship are imperfect, but they are mature. तो वो बात समझो। कहता अग्रवाल सर आप समझे नहीं। मैंने समझाइए। कहता सर ये जो मेरी वाइफ है ना, मैंने कहा जी सर ये इनडिसिप्लिन्ड है। मैंने कहा तेरे को फौज में भेज के इससे गोलियां चलवानी है या पुलिस में भेज के परेड करवानी है? क्या डिसिप्लिन ढूंढ रहा है? आई मीन तब मेरा दिमाग थोड़ा हिलना शुरू हो गया था। मैंने क्या डिसिप्लिन ढूंढ रहा है? आप बात सुनोगे आपका दिमाग उड़ जाएगा। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, ऐसा क्या इनडिसिप्लिन करती है जो यहाँ तक तुम आगे तलाक की नौबत आ गई? कहता सर फॉर एग्जाम्पल, आपका दिमाग उड़ जाए मेरा भी दिमाग उड़ जाए। क्या सर फॉर एग्जाम्पल ये टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है। टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है। अजीब पागल आदमी है। कई सुबह उठ के ना पहले टूथपेस्ट ठीक करेंगे, टावल यहाँ क्यों रखा है, फलाना यहाँ क्यों रखा है, ठिकाना यहाँ क्यों रखा है। तो मेरा दिमाग हिल गया था। मैंने उसकी वाइफ से कहा, मैंने कहा मैडम मेरे पास बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। कहती क्या सोल्यूशन है? तंग थी बेचारी, कर सर बताइए। मैंने बड़ा सिंपल है मैम, अगली बार जाओगी 2 टूथपेस्ट लेके आना, एक इसके लिए एक अपने लिए। इसे कहना ये ले अपनी जहां से मर्जी दबाइए, मेरी है जहां से मर्जी दबाऊं, 25 रुपए के लिए तलाक क्यों लेना। और अगली बार जब ये यूनिवर्सिटी से घर आए तो ड्राइंग रूम में टूथपेस्ट रख देना, उसके चारों तरफ डांस करना। कहेगा ये क्या कर रही हो? कहना मेरी टूथपेस्ट है, जो मर्जी करूं, तेरी बाथरूम में रखी जा, जो मर्जी कर। क्रेजी। अंडरस्टैंड this one sentence can take all your stress and anxieties. And remember, forget me, but remember this finger. Acceptance is the key. Acceptance is the key. पहाड़ पर जाते हैं, रोज खबरें छपती हैं, गिरने का डर। जो लोग डरते रहते हैं पीछे हो जा, पीछे हो जा। जो कहते हैं देखी जाएगी, डर लग रहा है लेकिन लेटेस्ट टेक ए चांस, वो बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, नदी में जाते हैं, डूबने का डर। जो लोग डरते रहते हैं वो पीछे हो जा, पानी की धारते जाए। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो रैपिड्स में राफ्टिंग करते हैं, जीवन के मजे लेते हैं। Accept your fears, accept your stress, tensions. Anyone has more than you or done better than you. If you don't accept it, it becomes jealousy. Anyone has done better than you or has more than you and you accept it, it becomes inspiration. Someone has hurt you, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, and if you don't accept it, सारा जीवन स्ट्रेस बना रहता है। Someone has hurt you and you accept it, it becomes forgiveness. Relation अच्छा चलता रहता है। और most important sentence of the today, and then we end the session. कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं। Someone is not the way you want them to be, and you don't accept them the way they are. आपके relationships में रोज स्ट्रेस रहेगा। Someone is not the way you want them to be, but you accept them that the way they are. You will feel better. ये आपको रोज करना पड़ेगा। ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिश्ते बेटर मत कीजिए, लाइफ बेटर मत कीजिए, बट फर्स्ट एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट इज। इस उंगली को याद रखिए, एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट। घर जाते हुए कहना ये लोग ऐसे हैं, इनके साथ जीवन मुझे बिताना है, और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। हेलो। तो मन में जो हर वक्त एंजाइटी चलती रहती है, समझते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं, क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या करते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और फिर आप सिचुएशन को बेटर है। जॉब पे भी ये लोग ऐसे हैं, इनके साथ नौकरी करनी है, और सबसे बड़ी बात रोज कहनी है, और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। हेलो। इन लोगों के साथ काम करना है, ये जीवन भर यही हैं, और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। तो मन में जो तनाव की समझते क्यों नहीं, बोलते क्यों बोलते हैं, हर वक्त करते रहते, वो खत्म हो जाएगी। Then work on the ways of improving the situation, but before you resolve any problem,
before you resolve any relationship, before you resolve any situation at workplace, before you resolve any problem at home, first accept them. Acceptance is the key. और रोज शाम को घर घुसते हुए कि ये लोग ऐसे हैं, इनके साथ जीवन बिताना है, और सबसे important वाक्य, ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार हैं. You will be much at peace. You will get into your home with a better mindset and better heart set. So applies to your work. So thank you very much for getting me here, Dr. Kanchan and Prashant ji and everyone. And thanks to this more than 100 people for giving that much energy, for your time, for your attention. I'm so very grateful to all wonderful, extraordinary people that who are here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for coming. In Thank fact, you it was so very much, sir. enlightened. much, sir. Thank you so Thank you so much. Thank you. कैसा लगा आपको सेशन? जस्ट लेट मी नो, एक दो लोग तो आई विल बी हैप्पी एंड गो अवे. Excellent, बहुत sir. अच्छा लगा सर, एक्सीलेंट था. sir. थैंक यू कल्पना जी. Seriously, थैंक it यू is अंकित. excellent. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर निर्मला शलभ जी, आपके धन्यवाद का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू मनीषा जी. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your inspirational lecture. I am sure that after today's session, there will be some change in our life. Your lecture will definitely help us to reduce negativity in our life, anxiety, stress, unwanted fear that often trouble us a lot. We will try to control it and face our problem with positive attitude. Especially your practical demonstration will also help us to reduce stress. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Can I take leave, sir, now? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you very much.